Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, Yashodhan ji. Sir, good afternoon, Dhaval sir. Good afternoon. जी sir. Sir, shall we wait for others to join नहीं, or start? हम लोग लाइव हो चुके हैं। जी. हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। Good evening, everyone. On behalf of CIRC of ICI, it gives me immense pleasure to welcome you all to the today's session on Digital Personal Data Protection Act, a subject of the immense relevance in our rapidly evolving digital world. I myself, CA Yashvardhan Jain, I am the moderator of the program. I would like to welcome, first of all, our CIRC, our regional council member, CA Nirbhik Ji Gandhi, who is a very dynamic personality and he belongs to Neemuch only. मतलब हमारे दिल में तो है सर, भले आप भिलवाड़ा रहते हो. We welcome you, sir. We also welcome our speaker of the session, CA Siddharth Ji Agarwal. He is from Mandsaur. Uh, I want to speak a brief profile about him. उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ देना चाहूंगा. सी सिद्धार्थ अग्रवाल is a dynamic and multi-talented chartered accountant who qualified in the year 2017 at the very young age of 22. A driven academician and a professional, he has consistently demonstrated excellence across domains. He holds a Bachelor of Law degree with the first division from Vikram University and has further enriched his knowledge base by successfully completing Diploma in Information System, that is DISA, very difficult course in our system, and Forensic Accounting and Fraud Detection FAFD course by ICAI. In addition to his core qualifications, he has cleared several specialized certificate courses from ICI, including Artificial Intelligence, Concurrent Audit of Banks, Fundamental and Technical Analysis of Stocks, Overseas Outsourcing from US Market, Public Finance and Government Accounting, and Real Estate Laws and Regulations. He has also cleared peer review examination conducted by the ICAI. He is currently pursuing advanced courses in GST, MSME, and Professional Skills Investment Program from ICAI, alongside a post-graduation diploma in business administration from the esteemed Symbiosis University. Professionally, he has been appointed as the youngest professional director of Smriti Nagarik Sahakari Bank, the largest urban cooperative bank in Madhya Pradesh, with a business portfolio exceeding 1100 crore rupees. As a devoted career counselor, he has also counseled more than 3,500 students covering the states of MP and Rajasthan and motivated the students for CA course. His journey exemplifies the fusion of professional excellence and deep-rooted cultural values. सर प्रोफाइल ये अभी थोड़ी सी बोली है मैंने ब्रीफ करके. बाकी सिद्धार्थ जी अग्रवाल इज अ वेरी इमर्जिंग नेम फ्रॉम मंदसौर. So I would like to welcome CA Siddharth Agarwal. Sir, I also would like to welcome CA Dhavalji Kothari, his chairman from Jodhpur branch. Welcome, sir. Our CIRC chairman and secretary will join us soon. So I will introduce them at that time. May I यशवंतन know? भाई है ना, सीआरसी चेयरमैन सी अंकुर कुमार गुप्ता जी ज्वाइन कर चुके हैं। अच्छा, वेलकम सर. वेलकम CA अंकुर जी गुप्ता सर. थैंक यू यशवर्धन जी। बस आज मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि ऑन द वे हूँ। नेटवर्क आ रहा जा रहा है, बट सभी मेंबर्स के लिए मैं ज्वाइनिंग जो किया है जिन्होंने भी, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब लोगों को, जो सिद्धार्थ जी हैं, आप जो इंस्टीट्यूट के लिए काम कर रहे हैं, हमारी पूरी CISC टीम, उन सबके एफर्ट से हम मेंबर्स के लिए जो पेश कर पाए, नए नए एरिया जो निकल पाए, कोशिश कर रहे हैं कि मेंबर्स को कैसे से ज़्यादा बेनिफिट मिल पाए। तो इसी की एक कड़ी में आज का ये प्रोग्राम रखा है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने टाइम निकाला मेंबर्स के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्योर, थैंक यू सर. थैंक यू अंकुर सर. थैंक यू। ये अंकुर सर ने ही है इसको ऑर्गेनाइज करवाया है, जो हमारे कोऑर्डिनेटर है मेन निर्भीक जी गांधी, CIRC चेयरमैन सर, सेक्रेटरी सर सिद्धार्थ जी. थैंक यू सर. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. विल गेट बैक टू यू सर. CA सिद्धार्थ जी अग्रवाल, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट सर सेशन को ऑनगोइंग करें. I'm sharing screen. Kindly tell me whether the screen is shared or not. Image. Is it Sir, shared? very clear. Very clear. Okay. Good afternoon to all the participants. A special thanks to CIRC Chairman C. Ankur Ji Gupta Sahab and Program Coordinator CA Nirbhik Ji Gandhi Sahab
and CA Dhaval Kothari ji, Chairman Sikasa, for providing this opportunity. Now I will straight come to the topic, the Digital Personal Data Protection Act. सिद्धार्थ सर, हाँ सर एक मिनट, हाँ मैं धवल जी कोठारी से भी रिक्वेस्ट करूंगा, दो शब्द अगर आप कहेंगे सब इसके लिए। श्योर श्योर। हाँ सर यशवर्धन भाई, है ना, धवल एक्चुअली सर, हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, तो इट वुड बी बेटर कि अपन लोग इसको पहले कंप्लीट करें। एट द एंड अपन लोग जब Q&A लेंगे उस समय डिस्कस कर लेंगे। ठीक है सिद्धार्थ भाई प्लीज। जी सर, जैसा आप कहें। द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2022 2023, हम में से बहुत सौ ने इसका नाम ही सुना होगा। वी आर नॉट मच अवेयर अबाउट इट। So it received the presidential assent on 11th August 2023. And what was the reason behind it? The reason behind it, because based on the landmark Puttaswamy judgment, government recognized the right to privacy as a fundamental right under Article 21 of the Indian Constitution, and hence they thought that they should come with an act which address the privacy concerns of the individuals and the entities. The act now, as regards the implementation of the act shall come into force on dates appointed by the central government through notification in the official gazette, with different provisions potentially effective on different dates. As on date, the date is not yet notified. When the date will be notified, the act will be implemented. सिद्धार्थ भाई, आपका जो PPT है शायद वो रुक गया है। हाँ वो इशू अभी आ गया। यस। Now, हाँ this is the purpose and scope. Section 3, up to purpose and scope is covered in Section 3 of the Act. Where it applies? It applies to all digital personal data processed within the territory of India, regardless of when the data was collected or processed. मतलब अगर आपका कोई डेटा है, अगर वो 5 साल पुराना भी है, और अगर हम उसे आज प्रोसेस कर रहे हैं टेरिटरी ऑफ इंडिया में, तो जिस दिन से ये एक्ट इफेक्टिव हो जाएगा, उस दिन से एक्ट के सारे प्रोविजंस उस प्रोसेसिंग पर लागू होंगे। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन मतलब इंडिया के बाहर कब अप्लाई होगा? एक्सटेंड टू प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल पर्सनल डेटा आउटसाइड इंडिया इफ इट रिलेट्स टू ऑफरिंग गुड्स और सर्विसेज टू डेटा प्रिंसिपल्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी अगर मैंने वॉलमार्ट की वेबसाइट से कुछ ऑर्डर किया और वॉलमार्ट की वेबसाइट पर मैंने डिलीवरी एड्रेस इंडिया का दिया, तो जो गुड्स और सर्विसेज है वो इंडिया में ऑफर कर रही है, तो उस ट्रांजेक्शन के लिए भी जो मैंने डेटा वॉलमार्ट को मेरा शेयर किया है, उस पर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के सभी प्रावधान लागू होंगे। की एक्सक्लूजन्स, यानी ऐसी क्या चीज जिस पर ये अप्लाई नहीं होता है। डज नॉट अप्लाई टू नॉन डिजिटल पर्सनल डेटा, मैनुअली प्रोसेस्ड पर्सनल डेटा or in non-digital form, or personal data processed by individuals for personal or domestic purposes. Means if I have my Aadhaar card copy in a physical format, in a hard copy, then this act is not applicable to that Aadhaar card copy. If I have manually processed personal digital data which is not in digital form, for example लैंड रजिस्ट्रीज जो थोड़े समय पहले होती थी, जब फिजिकल फॉर्म में रजिस्ट्रीज होती थी, तो इस पे अप्लाई नहीं होगा। Now the next slide is key terms and definitions. Key terms and definitions is covered in section 2. Now section 2, the first definition that comes in section 2 is data principal. The individual to whom the personal data relates, essentially the owner of their personal information. Now who is the data principal? जिस भी व्यक्ति से related वो personal data है, वो उस data का data principal है। For example, Rahul, who uses the food delivery app, is the data principal for his name, address and food preferences. आप अगर किसी फूड डिलीवरी ऐप पे कुछ ऑर्डर कर रहे हैं, तो आप वो ऑर्डर फुलफिल करने के लिए जो आपकी पर्सनल डिटेल्स देते हैं, जैसे आपका नेम, आपका एड्रेस, आपका कॉन्टेक्ट नंबर, तो ये जो चीजें हैं ये आपके लिए आपका पर्सनल डेटा है, और उस फूड डिलीवरी ऐप के लिए आप डेटा प्रिंसिपल होंगे, राइट। और डेटा प्रिंसिपल इंडिविजुअल ही होगा, ये एक्ट में क्लियर लिखा हुआ है। डेटा प्रिंसिपल द इंडिविजुअल टू whom द पर्सनल डेटा रिलेट्स, ठीक है। डेटा फिड्यूशियरी, डेटा फिड्यूशियरी क्या होता है? द एंटिटी दैट डिटरमाइंस द पर्पस एंड मींस ऑफ प्रोसेसिंग पर्सनल डेटा। फॉर एग्जांपल, आपने फूड डिलीवरी ऐप पे आपका जो डेटा पुट किया है, तो वो फूड डिलीवरी ऐप डिसाइड करेगा कि वो आपकी उस इंफॉर्मेशन का क्या यूज करेगा और उसे कैसे प्रोसेस करेगा, है ना। तो डेटा फिड्यूशियरी इज द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग द डेटा प्रिंसिपल डेटा। डेटा प्रोसेसर,
processes data on behalf of the data fiduciary following their instructions. प्रोसेसर कौन होता है? एक एक ऐसी एंटिटी होती है जो डेटा फिड्यूशियरी के कहने पर उनके इंस्ट्रक्शंस के अनुसार उस डेटा को प्रोसेस करती है। फॉर एग्जांपल, आपने किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के कोई क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है जो उनकी पूरी ऐप को मैनेज कर रहा है, तो दैट क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर दैट स्टोर्स कस्टमर डेटा फॉर एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म विदाउट डिटरमाइनिंग हाउ दैट डेटा इज यूज। उस डेटा को कैसे यूज करना है ये डेटा प्रोसेसर डिटरमाइन कभी नहीं करता है, ये डिटरमाइन हमेशा करेगा फिड्यूशियरी। फिड्यूशियरी डेटा प्रोसेसर को बताएगा कि आपको डेटा किस तरह से प्रोसेस करना है। इज इट क्लियर? राइट? आपको कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं। Sure, sir. May I request all the attendees to please raise your queries at the same time. Siddharth sir will take at the same time. Thank you, सिद्धार्थ sir. भाई, हाँ है ना, अगर कोई आईटीआर के लिए डेटा मेरे पास आया है, हाँ मैंने उसको प्रोसेस किया, हाँ। डेटा आईटीआर फाइल हो गया। हम्म आईटीआर फाइल होने के बाद अगर आईटीआर का डेटा मैं शेयर करता हूँ हम्म अदर देन क्लाइंट, हम्म। तो क्या इसमें कवर होगा क्या? बिल्कुल सर, आपने आईटीआर, ये मेरी नेक्स्ट स्लाइड में आएगा अभी, पर आपने उसको पूछा उसके लिए बहुत धन्यवाद सर आपका। जब आप किसी क्लाइंट से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो यू आर द डेटा फिड्यूशियरी फॉर दैट क्लाइंट। आपका क्लाइंट हो गया डेटा प्रिंसिपल, क्योंकि उसने आप पे भरोसा करके आपको डेटा दिया है। अब आप उस डेटा को, कई सारे हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हम इनकम टैक्स और जीएसटी रिटर्न फाइलिंग में यूज करते हैं, तो वो सारे सॉफ्टवेयर जो है हमारे, वो डेटा प्रोसेसर हैं, क्योंकि वो हमारे कहने पर वो इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं, वो हमारे कहने पर उस इंफॉर्मेशन का हमारे अकॉर्डिंग यूज कर रहे हैं। तो आपने जो बोला कि आपके क्लाइंट, और आपके केस में आपका क्लाइंट होगा डेटा प्रिंसिपल, आप होंगे डेटा फिड्यूशियरी, और आपका जो सॉफ्टवेयर पर्सनल है जो आपको वो फैसिलिटी दे रहा है कि आप क्लाइंट का सारा डेटाबेस स्टोर करें उस सॉफ्टवेयर में, वो हो गया सर डेटा प्रोसेसर। तो समटाइम क्या होता है कि कुछ बैंक्स होते हैं, वो हम्म जनरली क्या करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट से कॉल करके बोल देते हैं कि आपके क्लाइंट ने मुझे बोला है कि हम्म आप मेरे को आईटीआर की कॉपी या जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कर दो। हम्म। तो क्या हमें प्रोवाइड करनी चाहिए? सर आई सजेस्ट कि आप डायरेक्ट बैंक को ना करें, आप वो क्लाइंट को शेयर करें और फिर क्लाइंट उसे बैंक को शेयर करें। क्योंकि क्या है सर, जब तक अच्छा है तब तक क्लाइंट कुछ नहीं बोलेगा, किस दिन कुछ ऐसा हो गया तो क्लाइंट बोलेगा सर आपने मेरे से बिना पूछे कैसे शेयर कर दिया। सही बात है। एक्चुअली हम मतलब मेरे ऑफिस में तो प्रैक्टिस नहीं है, हम हम्म लोग क्लाइंट को ही शेयर करते हैं, बैंक को नहीं कर सकते। लेकिन जो मेंबर शायद अटेंडीज हैं उनमें अगर किसी कोई ऐसा करता है तो शायद आज ये सुनने के बाद शायद नहीं करेगा। बिल्कुल सर। पहले काफी, और इन इन केसेस में क्या होता है ना कि मान लो मैं ऑफिस में नहीं हूँ, स्टाफ को डायरेक्ट क्लाइंट ने फोन कर दिया कि यार मेरा डेटा देना, तो स्टाफ तो शेयर कर देता है ना अल्टीमेटली अपनी मेल आईडी से। सही बात है, और पहले मैं भी ऐसा करता था सर, पर मैंने अब इस प्रैक्टिस को बिल्कुल चेंज कर दिया है कि अब भेजना है तो क्लाइंट को ही भेजना है, नहीं तो नहीं भेजना है। अब है सर Thank ग्राउंड्स फॉर प्रोसेसिंग पर्सनल डेटा, कि हम किस ग्राउंड के लिए पर्सनल डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। ये लिखा है सेक्शन 4 में। लॉफुल पर्पस, पर्सनल डेटा जो भी हम कलेक्ट कर रहे हैं वो हम सिर्फ एक लॉफुल पर्पस के लिए ही कलेक्ट कर सकते हैं, और जिसके लिए डेटा प्रिंसिपल ने कंसेंट दिया हो। यानी अगर धवल सर ने उनके क्लाइंट से आईटीआर के लिए डेटा दिया है तो वो उतना ही डेटा यूज करेंगे, उतना ही डेटा का उपयोग करेंगे जितना आईटीआर के लिए रिक्वायर्ड है। कंसेंट बेस्ड, the processing of personal data shall require consent which is free, specific, informed, unconditional and unambiguous। अब इसमें ये 5 शर्तें इन्होंने दी है, उसको ध्यान से समझना है। which is free यानी दबाव डाल के कंसेंट नहीं लेना है। स्पेसिफिक यानी हमें बताना है कि हम आपका ये जो डेटा ले रहे हैं ये आईटीआर पर्पस के लिए ले रहे हैं और उसमें हमें आपका इतना डेटा चाहिए। इन्फॉर्म्ड, क्लाइंट को बता के इन्फॉर्म हम कर ही रहे हैं कि हम आईटीआर पर्पस के लिए ले रहे हैं। अनकंडीशनल यानी कोई कंडीशन नहीं डालनी है कि अगर आप अगर ये दोगे तो ही आगे बढ़ेगा, उसको बिल्कुल फ्री कंसेंट देना है कि आप चाहो तो दो और आप काम नहीं कराना चाहते हो तो मत दीजिए। एंड अनएम्बिगुअस, अनएम्बिगुअस यानी कुछ भी शर्त उसमें ऐसी नहीं होनी चाहिए जो किसी को जो वेग हो या किसी को समझना है। वो जो शर्तें होनी चाहिए क्लियर होनी चाहिए। इसमें गवर्नमेंट ये भी कहती है कि अगर आप कोई भी डेटा प्रिंसिपल से अगर डेटा फिड्यूशियरी डेटा कलेक्ट करता है तो उसमें वो पहले नोटिस दे, और अगर डेटा प्रोसेसर को शेयर करता है जो हम हमारे सॉफ्टवेयर को करते हैं, जीएसटी सॉफ्टवेयर को, जैसे कंप्यूटेक्स हो गया, जीनियस हो गया, इस पे जो हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं उसके लिए भी एक कॉन्ट्रैक्ट का प्रोविजन है इस एक्ट में कि वी कैन शेयर थ्रू अ कॉन्ट्रैक्ट। लेजिटिमेट एक्सेप्शंस क्या है? कुछ ऐसी जगह है जहां पर हम पर्सनल डेटा को कैसे यूज कर सकते हैं विदाउट कंसर्न। स्टेट फंक्शंस हो गया, कंप्लायंस विद कोर्ट ऑर्डर्स हो गए, मेडिकल इमरजेंसीज हो गई। जैसे स्टेट फंक्शंस, मान लीजिए कोई सब्सिडी आपके अकाउंट में आ रही है, मान लीजिए लाइक इन एमपी वी हैव अ स्कीम कॉल्ड लाडली बहना योजना।
मान लीजिए लाडली बहना योजना की कोई बेनिफिट अगर किसी फीमेल लेडी के अकाउंट में आ रहा है, तो गवर्नमेंट हैज द राइट टू एक्सेस डिटेल्स ऑफ द फीमेल बेनिफिशियरी विदाउट हिज कंसर्न। और ये ऐसा पहला एक्ट है सर जिसमें शी यूज किया गया है। हम अभी तक जितने भी एक्ट पढ़ते आए हैं वहां पर हम अधिकतर जगह ही पढ़ते आए हैं। ये ऐसा पहला एक्ट है मेरी नजर में जो मैंने पढ़ा है कि जहां पर शी, रेफरेंस टू शी कहा गया है। नोटिस एंड कंसर्न, सेक्शन 5 एंड 6 ये बोलता है नोटिस रिक्वायरमेंट्स। क्या है नोटिस रिक्वायरमेंट्स? नोटिस मस्ट बी क्लियर, प्रिसाइज एंड इन प्लेन लैंग्वेज, मस्ट स्पेसिफाई पर्सनल डेटा टू बी कलेक्टेड इन पर्पस ऑफ प्रोसेसिंग। जैसे अगर मुझे आईटीआर भरना है तो मैं उसको कहूंगा कि मुझे क्या क्या चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए, और और कोई इन्वेस्टमेंट डिटेल्स चाहिए। ये स्पेसिफिक है। एंड पर्पस ऑफ प्रोसेसिंग क्या है? आईटीआर फाइल करना है इसलिए चाहिए। डिटेल्स ऑफ द राइट टू विड्रॉ कंसेंट। राइट टू विड्रॉ कंसेंट है, मान लीजिए कि क्लाइंट और मेरा नेगोशिएशन चल रहा है, हमारी बात चल रही है, और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ नेगोशिएशन डिस्कशन उनको लगता है कि उन्हें मुझे आईटीआर फाइल मुझसे नहीं करवाना है, देन द पर्सन कैन हैज द राइट टू विड्रॉ कंसेंट। वो विड्रॉ कंसेंट कर सकते हैं कि हमने इनको आईटीआर फाइल करने के लिए डेटा दिया था, पर अभी अभी इनसे इनसे आईटीआर फाइल नहीं कराना है, तो हम ये हमारी कंसेंट विड्रॉ कर रहे हैं और अभी हमारे डेटा को यूज नहीं करेंगे। इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा शेयरिंग विथ थर्ड पार्टीज यानी इफ आई एम फाइलिंग आईटीआर थ्रू अ सॉफ्टवेयर, I am providing the data of my client to that software, then I should inform my client that I would be sharing your information with these third parties. Consent provisions, consent must be freely given, specific and informed, ये हमने पढ़ी लिया है। Can be withdrawn at any time with same as is giving, ये रूल्स में आया है। डेटा प्रोटेक्शन रूल्स ड्राफ्ट जो 2025 अभी नोटिफाई हुए हैं 2-3 महीने पहले, ये उनमें आया है कि कैन बी विड्रॉन एट एनी टाइम विथ सेम ईज एज गिविंग। मतलब आपने जितना आसान प्रोसीजर कंसेंट लेने के लिए बनाया था, आपको उतना ही आसान प्रोसीजर कंसेंट हटाने के लिए भी बनाना है। प्रोसेसिंग मस्ट सीज अपॉन विड्रॉवल अनलेस अदरवाइज अलाउड बाय लॉ। यानी अगर मेरे क्लाइंट ने मना कर दिया है मुझे कि सर मैं आपसे रिटर्न नहीं फाइल कराऊंगा, आई विल फाइल माई रिटर्न विद समवन एल्स, तो मैं फिर उसका डेटा किसी भी तरह से प्रोसेस नहीं करूंगा। नाउ कंसेंट एंड ट्रांसपेरेंसी, द डीपीडीडी रिक्वायर्स क्लियर, स्पेसिफिक एंड इजीली अंडरस्टैंडेबल कंसर्न नोटिसेस। कंसर्न नोटिसेस जो होते हैं वो बिल्कुल क्लियर, स्पेसिफिक और इजीली अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, एक हेल्दीफाई मी ऐप है, आप में से कईयों ने यूज करी होगी। तो हम जब उस ऐप पे लॉग इन करते हैं तो वो हमें एक नोटिफिकेशन देता है कि हेल्दीफाई विल कलेक्ट योर डेटा फॉर दिस दिस पर्सन फॉर दिस दिस पर्पस। तो वो हेल्दीफाई मी मुझे क्या क्या बताता है? व्हाट हेल्थ डेटा विल बी कलेक्टेड, क्या डेटा वो ले रहा है, मेरा वेट ले रहा है, एक्टिविटी ले रहा है, डाइट ले रहा है। एक्टिविटी यानी मैं पूरे दिन में कितने स्टेप्स चल रहा हूँ, मैं कितनी कैलोरीज बर्न कर रहा हूँ, ये वो मेरे से पूछेगा। हाउ इट विल बी यूज्ड, वो इसका कैसे यूज करेगा ये भी वो बता रहा है। वो बोल हेल्दीफाई में बताता है कि वो पर्सनलाइज फिटनेस प्लान्स को बनाने में मेरे लिए वो यूज करेगा। हु इट माइट बी शेयर्ड विद, किसके साथ हेल्दीफाई मी शेयर करेगा, तो वो बताता है कि वो उसके रिसर्च पार्टनर्स के साथ शेयर करेगा। एंड हाउ लॉन्ग विल इट बी रिटेन, वो कितने समय तक मेरे इस डेटा को अपने पास स्टोर करेगा। तो उनकी पॉलिसी है कि अकाउंट आपका जब तक है तब तक रखेंगे, जिस दिन आपने अकाउंट डिलीट कर दिया हमारा +30 डेज, ये उनकी पॉलिसी है कि अकाउंट डिलीशन +30 डेज हम आपका डेटा स्टोर करके रखेंगे। कंसेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स, अब कंसेंट मैनेजमेंट, जब हमें कंसेंट लेना है तो हमें कंसेंट लेने के लिए कंसेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी बताना पड़ेगा। यूजर रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले हमें यूजर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अप्रूव किया है कंसेंट मैनेजर डिजी लॉकर को। डिजी लॉकर अलाउज यूजर्स टू क्रिएट अ सिंगल अकाउंट टू मैनेज कंसेंट अक्रॉस मल्टीपल सर्विसेज। हम जब डिजी लॉकर पे जाते हैं तो वो डिजी लॉकर हमसे 3-4 टिक बॉक्सेस पे अपनी ओपिनियन मांगता है, हम उस पर चेक करते हैं और उससे हम उसको एक्सेस देते हैं कि वो हमारा जो अकाउंट है उसको मैनेज कर सकता है और मल्टीपल सर्विसेज के लिए उस डेटा को यूज कर सकता है। कंसेंट रिवोकेशन, जैसे अगर आपने किसी टेलीकॉम ऑपरेटर को अपना डेटा दे रखा है और जिससे उसको आपका कॉलिंग पैटर्न पता पड़ रहा है, तो आप उस टेलीकॉम ऑपरेटर को कह सकते हैं एक नोटिस देके कि साहब अब मैं कंसेंट रिवोकेट कर रहा हूं, अब मैं आने चाहता कि आप मेरा डेटा शेयर करो, मैं दूसरे सर्विस प्रोवाइडर पर शिफ्ट हो रहा हूँ। सर्विस डिस्कवरी, हम जब कंसेंट मैनेजमेंट के लिए डिजी लॉकर पे जाते हैं तो हम वहाँ पे सारी कनेक्टेड सर्विसेज देख सकते हैं हमारी।
consent granting. For example, when applying for a loan, users can approve specific data sharing from HDFC Bank to LIC Housing Finance through DigiLocker. अगर मेरा HDFC बैंक में अकाउंट है और मुझे LIC हाउसिंग फाइनेंस से लोन चाहिए, तो यूजिंग माय डिजिलॉकर परमिशन LIC हाउसिंग फाइनेंस कैन एक्सेस माय HDFC बैंक डेटा. कंसर्न ट्रैकिंग, हम ये भी देख सकते हैं कि हमारे डेटा को किसने एक्सेस किया है और कैसे एक्सेस किया है. ये हो गया. नाउ ये होता है लेजिटिमेट यूजेस. फॉर व्हाट यूजेस वी कैन यूज इट. वॉलेंट्री प्रोविजन, अगर हमने किसी को डेटा अपनी मर्जी से दिया है, उसने मांगा नहीं है, हमने वॉलेंट्री दिया है, पर्सनल डेटा है, तो कोई दिक्कत नहीं है. जैसे बहुत सारा डेटा हमारी सोशल मीडिया पे भी अवेलेबल होता है. स्टेट फंक्शंस, जैसे कोई लाइसेंस गवर्नमेंट को इश्यू करना है, कोई परमिट देना है, कोई सर्टिफिकेट देना है, कोई सब्सिडी देनी है, तो वहां वो आपका डेटा ले सकते हैं विदाउट एनी कंसर्न. कंप्लायंस, कोई कोर्ट ऑर्डर है, कोई लीगल प्रोसीडिंग्स है, या वहां जहां पर लॉ से रिक्वायर्ड है कि आपको ये डेटा देना है, तो फिर किसी के कंसर्न की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. एम्प्लॉयमेंट, अगर आप किसी के साथ एम्प्लॉयमेंट में हो तो आपका जो डेटा है वो यूज कर सकता है विदाउट कंसर्न फॉर रिक्रूटमेंट, टर्मिनेशन एंड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज और बेनिफिट्स. इमरजेंसीज, अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो वहां पर आपका डेटा एक्सेस किया जा सकता है विदाउट आपकी परमिशन. कोई हेल्थ क्राइसिस है, कोई डिजास्टर है, तो वहां भी आपका डेटा एक्सेस हो सकता है. अब डेटा फिड्यूशियरी जो हम बात कर रहे थे, डेटा फिड्यूशियरी इज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ डेटा एंड इंश्योर दैट द डेटा इज प्रोसेस्ड इन द एक्सप्लिसिट फॉर्मेट विच इज गिवन बाय द डेटा प्रिंसिपल, है ना. जैसा डेटा प्रिंसिपल को हमने बोला है कि हम डेटा वैसा यूज करेंगे, वैसा यूज करने की जवाबदारी किसकी, डेटा फिड्यूशियरी की. भले ही वो डेटा प्रोसेसर को दे दे डेटा प्रोसेस करने के लिए, पर जवाबदारी पूरी तरह से डेटा फिड्यूशियरी की ही रहेगी. अब कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्वायरमेंट जिसकी मैं बात कर रहा था, जब धवल सर ने बात करी थी, डेटा फिड्यूशरीज में इंगेज डेटा प्रोसेसर्स टू हैंडल पर्सनल डेटा ओनली अंडर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. तो सर से हमारी बात हो रही थी कि जब हम किसी भी सॉफ्टवेयर को हमारे देते हैं, जैसे हम हमारे इनकम टैक्स जीएसटी की किसी भी सॉफ्टवेयर को जब हमारा क्लाइंट का डेटा प्रोवाइड करते हैं, तो इसमें लिखा है कि डेटा फिड्यूशरीज में इंगेज डेटा प्रोसेसर्स टू हैंडल पर्सनल डेटा ओनली अंडर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. ये अब हमें जिस दिन से एक्ट इंप्लीमेंट हो जाएगा, हमें करना पड़ेगा कि हमें हमारे डेटा प्रोसेसर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा कि आप हमारे जो डेटा है क्लाइंट का, उसको इसी स्पेसिफाइड पर्पस के लिए यूज करोगे. अनटिल अनलेस गवर्नमेंट जब एक्ट में कोई ऐसा अमेंडमेंट लिया है कि ये इस कैटेगरी के नीचे वाले लोगों के ऊपर अप्लीकेबल नहीं होगा, कि एक कोई टर्नओवर बना दे या कोई क्लाइंट की लिस्ट बना दे कि अगर 1,000 से कम क्लाइंट है तो अप्लीकेबल नहीं होगा, 2,000 से कम क्लाइंट है तो एप्लीकेबल नहीं होगा, ऐसा कुछ वो जब तक नहीं देते तब तक तो सबके ऊपर एप्लीकेबल है. द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंप्लायंस रिमेन्स विद द डेटा फिड्यूशियरी. हम ये नहीं कह सकते कि सर हमने हमारे सॉफ्टवेयर वाले को दिया था, हमने हमारे सॉफ्टवेयर पर्सनल को दिया था, उससे मिसप्लेस हो गया, उससे मिसयूज हो गया. रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से डेटा फिड्यूशियरी की है, डेटा प्रोसेसर की नहीं है. पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी डेटा फिड्यूशियरी की है. और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी डेटा फिड्यूशियरी की? क्वालिटी एंड एक्यूरेसी की. जो डेटा उन्होंने लिया है वो पूरी तरह से क्वालिटी वाला रहे, मतलब वो करप्ट ना हो, एक्यूरेट रहे, गलत ना हो. डेटा प्रोटेक्शन ऑब्लिगेशंस, डेटा फिड्यूशियरी की ये भी ऑब्लिगेशन है कि वो इतने सेफगार्ड रखे कि वो डेटा किसी तरह से करप्ट ना हो, कोई उसको साइबर अटैक ना कर ले, कोई उसका अनऑथराइज यूज ना कर ले. और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ब्रीच नोटिफिकेशन. यानी मान लीजिए मैंने मेरे क्लाइंट का डेटा कलेक्ट किया, मैंने उस क्लाइंट का डेटा मेरे से, जैसे धवल सर बता रहे थे, मैंने गलती से डायरेक्ट बैंक को भेज दिया, क्लाइंट को भेजे बिना. और बैंक और क्लाइंट के बीच में मान लीजिए कोई कोई बात हुई नहीं थी, कोई ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं था. बैंक वाले ने रैंडमली मुझे फोन किया कि सर आपके इन क्लाइंट का डेटा भेज दीजिए, मैंने उन्हें डेटा भेज दिया. अब क्या होगा, मैंने ब्रीच तो कर दिया, क्लाइंट ने तो डेटा मुझे दिया था, मैंने बैंक को क्लाइंट को बिना बताए शेयर कर दिया. तो I had to promptly notify the board and the affected data principals of any personal data breach in the prescribed manner, maintaining transparency about security. मुझे तुरंत प्रभाव से बोर्ड को भी इंडिमेट करना पड़ेगा. बोर्ड कौन सा? डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को भी इंटीमेट करना पड़ेगा. और अफेक्टेड डेटा प्रिंसिपल यानी जिस क्लाइंट का वो डेटा था उसको भी बताना पड़ेगा कि साहब मेरे से गलती हो गई है और मैंने ये गलती कर दी है, मैंने आपकी कंसेंट के बिना आपका डेटा मैंने तीसरी पार्टी को शेयर कर दिया. अब ये गलती की क्या सजा होगी ये भी हम आगे पढ़ेंगे. डेटा रिटेंशन एंड इरेजन. जैसे ही कंसेंट विड्रॉ हो गई, ये हमारा दायित्व बनता है एज अ डेटा फिड्यूशियरी कि हम उस डेटा को इरेज कर दें. अभी जैसे मान लीजिए किसी क्लाइंट ने आपको आईटीआर फाइल करने के लिए डेटा दिया और आपने वो आईटीआर फाइल कर दिया है, और आपका एक पॉलिसी है कि आप आईटीआर के डेटा 6 महीने या 1 साल तक
रखते हैं, उसके बाद का नहीं रखते हैं, तो उसे बताएं कि हम इसको आईटीआर के बाद 1 साल तक हमारे पास स्टोर करेंगे, और जब उससे हमारा आईटीआर का ट्रांजेक्शन जब वो हमसे नहीं करेगा तो हम उसको हटा देंगे। पब्लिश कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ डेटा प्रोटेक्शन इन्फॉर्मेशन, जितने भी सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशियरी होंगे, सिग्निफिकेंट फिड्यूशियरी डेटा फिड्यूशियरी को अभी गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई नहीं किया है, बट मैं मानता हूं कि जितने भी हमारे ई कॉमर्स एंटिटीज हैं वो सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशियरी के अंदर आएंगे ही आएंगे। उनको एक डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर भी अपॉइंट करना पड़ेगा, और वो डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर की कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी उन्हें पब्लिकली मेंशन करनी पड़ेगी। हेल्थ केयर इंडस्ट्री का एग्जांपल है, एक पॉपुलर फिटनेस और हेल्थ केयर ऐप है, वो कैसे डीपीडीपीए के लिए अपने आप को तैयार कर रही है। क्लियर कंसेंट मैकेनिज्म, वो हार्ट रेट डेटा लेती है वेरिएबल से, जो हम रिस्ट वॉच पहनते हैं वो उससे हार्ट रेट पता करती है। तो वो क्लियर कंसेंट लेती है कि हम ये जो शेयर डेटा है आपका, ये हम हार्ट रेट को मॉनिटर करने के लिए ले रहे हैं। पर्पस लिमिटेशन, ये वो भी बताती है कि हम इससे आपको फिटनेस रिकमेंडेशन देंगे, और हम इसको किसी भी इंश्योरर के साथ नहीं शेयर करेंगे, ना ही किसी मार्केटर के साथ शेयर करेंगे। डेटा सिक्योरिटी, वो एंड टू एंड इंक्रिप्शन भी करते हैं डेटा का, ताकि डेटा करप्ट ना हो। और राइट टू इरेजर, जो बहुत इंपॉर्टेंट राइट है जो इस एक्ट में बताया गया है, कि उन्होंने जैसे ही आपका हेल्थ केयर जो आपने सब्सक्रिप्शन लिया था उस ऐप का, जैसे ही वो खत्म होता है, वो आपको ऑप्शन देते हैं कि आप राइट टू इरेजर देते हैं कि विद इन 72 आवर्स वो आपका सारा डेटा डिलीट कर देंगे अगर आप चाहते हैं तो। अब सोशल मीडिया एंड डेटा राइट्स, जैसे पहले जब फेशियल रिकॉग्निशन होता था तो पहले फेशियल रिकॉग्निशन में वो नोटिफिकेशन नहीं देते थे, लेकिन अब फेशियल रिकॉग्निशन में नोटिफिकेशन आने लग गया है। आपने फेसबुक पर देखा होगा, तो एक कभी कभी एक प्रॉम्प्ट आता है कि मेटा इज कलेक्टिंग कॉल इंफॉर्मेशन फॉर कॉलिंग पैटर्न्स। तो वहां भी वो नोटिफिकेशन देने लग गए हैं कि हम कॉल ड्यूरेशन आपकी ट्रैक कर रहे हैं। फिर अभी सोशल मीडिया में जितना भी डेटा आपका है उनके पास, वो उन्होंने डाउनलोड करने के लिए मशीन रीडेबल फॉर्मेट में भी देने लग गए हैं। फिर एक सोशल मीडिया यूजर का ट्वीट है, आई वॉज सरप्राइज टू डिस्कवर सोशल मीडिया साइट्स हैड कलेक्टेड ओवर 3 GB ऑफ माई डेटा ऑन माई ब्राउजिंग हैबिट्स। ये हमारे साथ भी होता है कि आप जैसे ही कुछ सर्च करते हैं और आपके पास इमीडिएट आपके पास आधे घंटे बाद उसका प्रॉम्प्ट आ जाता है कि आप ये सर्च कर रहे थे, आपकी सोशल साइट्स पे वो आ जाता है कि यू आर लुकिंग फॉर बैग्स, यू आर लुकिंग फॉर शूज। So using the new DPDPA mandate data access tool, I could see and control exactly what was being tracked. जब नया एक्ट पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन में आ जाएगा तो आप पूरी तरह से देख पाएंगे कि क्या उन्होंने आपसे डेटा लिया है और किसको वो उसका यूज कर रहे हैं। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस, चिल्ड्रंस डेटा। सेक्शन 9 में चिल्ड्रन डेटा की बात होती है। चिल्ड्रन डेटा, आप 18 साल से कम के किसी भी बच्चे का डेटा उनके पेरेंटल कंसेंट के बिना नहीं ले सकते। और पेरेंटल कंसेंट में भी लिखा है उन्होंने वेरीफाइबल पेरेंटल कंसेंट, यानी आपको वेरीफाई करना है कि ये आदमी उसका पेरेंट है। इट्स नॉट लाइक एक्स कम्स टू यू दैट आई एम द फादर और आई एम द मदर ऑफ वाई, और आपने उसका उसका ओटीपी लेके उसको कर दिया। आपको ये भी वेरीफाई करना है कि वो आदमी इनका पेरेंट है। साथ में कुछ उन्होंने प्रोहिबिशंस भी दिए हैं कि आप ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे आप बिहेवियरल मॉनिटरिंग कर रहे हो चिल्ड्रन की, या उनकी बिहेवियर ट्रैकिंग कर रहे हो। आप कोई भी एडवर्टीज इशू नहीं करेंगे जो चिल्ड्रन को डायरेक्ट करता हो, और आप ऐसी कोई प्रोसेसिंग नहीं करेंगे जिससे चाइल्ड को सिग्निफिकेंट हार्म हो। ये कैसे करेंगे? चिल्ड्रंस डेटा प्रोसेसिंग, पेरेंटल कंसेंट वेरिफिकेशन। जैसे वेदांतुज एजुकेशनल ऐप है, उन्होंने 2 स्टेप वेरिफिकेशन प्रोसेस लगाया है, रिक्वायरिंग बोथ द पेरेंट गवर्नमेंट आईडी स्कैन एंड अ वीडियो कंफर्मेशन बिलो अलाउइंग चिल्ड्रन अंडर 18 टू क्रिएट अकाउंट्स। क्योंकि ये एक एजुकेशनल ऐप है, तो जितने भी बच्चे हैं वो 18 से कम के ही होते हैं अधिकतर। तो उन्होंने एक 2 स्टेप वेरिफिकेशन बहुत अच्छी डिजाइन करी है कि पहले वो पेरेंट की एज कंफर्म करते हैं, वो पेरेंट है कि नहीं उसका वो कंफर्म करते हैं यूजिंग उनके आईडी प्रूफ्स, और फिर एक वीडियो कंफर्मेशन भी लेते हैं पेरेंट्स से कि मैं अपने बच्चे का डेटा उसके उसके एजुकेशन पर्पस के लिए दे रहा हूं और इसमें मेरी पूरी सहमति है। एज अप्रोप्रिएट डिजाइन, जैसे बायजूस ने जो उनका प्लेटफॉर्म डिजाइन कर रखा है वो ऐसा कर रखा है कि उसमें एनिमेशंस आते हैं जो बच्चों को डेटा कलेक्शन समझाते हैं, और जो भी उनके नोटिसेस होते हैं वो पेरेंट के ईमेल एड्रेस पे भेजते हैं। प्रोफाइल रिस्ट्रिक्शन, जैसे जब हम आपने देखा होगा जब हम नेटफ्लिक्स या अमेजन प्राइम यूज करते हैं
तो वो कैटेगरी पूछता है वेदर यू आर अ किड और वेदर यू आर एन एडल्ट, जब हम उसको एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने बिहेवियर एडवर्टाइजिंग और कंटेंट रिकमेंडेशन एल्गोरिथम जो उनके होते हैं, वो उन्होंने 18 बिलो वाले जो जितने भी यूजर्स हैं उनके लिए डिसेबल कर रखे हैं कि इनको हम कोई भी सजेशन या रिकमेंडेशन नहीं देंगे, इनको जो देखना है वो यही वही देखेंगे। सिग्निफिकेंट डेटा फिडुशियरी जिसकी हम बात कर रहे थे कि जो भी बड़े एंटिटीज है वो इसमें आएंगे, सेक्शन 10 है सिग्निफिकेंट डेटा फिडुशियरी का। जो सेक्शन कौन होगा सिग्निफिकेंट डेटा फिडुशियरी, वो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। उसका क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, वॉल्यूम ऑफ पर्सनल डेटा प्रोसेस। अगर कोई बहुत बड़ा डेटा प्रोसेस करता है तो वो सिग्निफिकेंट डेटा फिडुशियरी है। सेंसिटिविटी ऑफ पर्सनल डेटा प्रोसेस, कोई अगर बहुत सेंसिटिव डेटा प्रोसेस करता है तो वो सिग्निफिकेंट डेटा फिडुशियरी है। रिस्क ऑफ हार्म, अगर उस डेटा से डेटा प्रिंसिपल को बहुत घाटा हो सकता है, बहुत नुकसान हो सकता है, तो वो सिग्निफिकेंट डेटा फिडुशियरी है। पोटेंशियल इंपैक्ट ऑन सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, भारत की संप्रभुता के ऊपर अगर कोई आंच है तो वो सिग्निफिकेंट डेटा फिडुशियरी है। इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में कुछ है, और अगर स्टेट और पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए अगर वो डेटा है तो वो सिग्निफिकेंट डेटा फिडुशियरी है। अब सिग्निफिकेंट डेटा फिडुशियरीज की कुछ एडिशनल ऑब्लिगेशन है। एक तो डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर, हमने डिस्कस किया था कि जो सिग्निफिकेंट डेटा फिडुशियरी है वो एक डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट करेगा और उसको पब्लिक डोमेन में दिखाएगा भी कि हमारा डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर है और इन भाई साहब का ये कॉन्टेक्ट नंबर है। इंडिपेंडेंट डेटा ऑडिटर टू इवेल्युएट कंप्लायंस, इनको एक इंडिपेंडेंट डेटा ऑडिटर भी लगेगा, इनको डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट भी कराना होगा, इनको पीरियडिक ऑडिट भी कराना होगा। डेटा ऑडिट्स एंड इम्पैक्ट असेसमेंट का एक एग्जांपल लेते हैं हम। जब एक कैब कंपनी ने एक नया फीचर लॉन्च किया कि आपको राइडर लोकेशन से हम उसकी फ्यूचर राइड्स प्रिडिक्ट करेंगे। भाई ऑफ कोर्स अगर मेरी लोकेशन कंपनी के साथ है, मेरी लोकेशन का अगर डिटेल्स कंपनी के पास है, तो उन्हें पता है कि मेरी जितनी भी राइड्स होगी वो इसी के आसपास की लोकेशन से होगी। तो उन्होंने एक ऐसा फीचर लॉन्च किया जिससे राइडर की लोकेशन पैटर्न से वो उसकी फ्यूचर राइड प्रिडिक्ट करते थे कि ये यहाँ रहता है तो इसकी फ्यूचर राइड ऐसी होगी। लेकिन उन्होंने जब डेटा इम्पैक्ट असेसमेंट किया, डेटा ऑडिट एंड इम्पैक्ट असेसमेंट किया, तो उसमें रिवील हुआ कि इसमें प्राइवेसी रिस्क बहुत है, क्योंकि पैटर्न रिकॉग्निशन से होम और वर्क की लोकेशंस पूरी मालूम पड़ रही है। तो जो उनके यूजर्स हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए भी खतरा है। पोटेंशियल फॉर रिवीलिंग सेंसिटिव लोकेशंस, जो सेंसिटिव लोकेशंस है उससे वो भी पता पड़ रही थी जो पब्लिक डोमेन में नहीं आनी चाहिए। तो एज ए रिजल्ट क्या किया, कैब कंपनी ने लोकेशन फजिंग इंप्लीमेंट किया, जिससे क्या हुआ कि एग्जैक्ट एड्रेस नहीं आता था, उसके नियर बाय लोकेशंस के एड्रेस आते थे, एग्जैक्ट लोकेशन यूजर का नहीं आता था। और उन्होंने ऑप्ट आउट ऑप्शन भी दे दिया प्रिडिक्शन फीचर से कि अगर आप चाहते हो कि हम आपकी फ्यूचर राइट्स प्रिडिक्ट ना करें तो आप स्पेसिफिकली हमें इंस्ट्रक्शन दे दो कि आप ऑप्ट आउट कर रहे हो इससे। ये फीचर भी उन्होंने दे दिया। अब इसमें इनको ये सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशियरी है कैब कंपनी, तो इनको क्या करना है, इनको एनुअल ऑडिट कराना है, इनको ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी है, इनको डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट भी कराना है, जो उन्होंने कराया ही है। अब डेटा ब्रीच एंड नोटिफिकेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई रिक्वेस्ट ऑल टू प्लीज पे स्पेशल अटेंशन टू दिस स्लाइड। ब्रीच डिटेक्शन, पहले बार डे 0 जब मुझे पता पड़ा कि मेरा डेटा, मेरे पास जो डेटा था एज डेटा प्रिंसिपल का, वो गलत हाथों में चला गया है। फॉर एग्जाम्पल, बिग कंपनी डिटेक्टेड अनऑथोराइज एक्सेस टू 20 मिलियन कस्टमर रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग नेम्स, ईमेल आईडीज एंड हैश पासवर्ड। बिग कंपनी को पता पड़ा कि उनके 20 मिलियन यूजर्स का डेटा अनऑथोराइज एक्सेस चला गया है, जिसमें नेम भी है, ईमेल आईडी भी है और हैश्ड पासवर्ड्स भी है। अब उन्हें क्या करना है, विद इन 72 आवर्स उन्हें डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को नोटिफाई करना है। ये ड्राफ्ट रूल्स में लिखा है। ये सर आपका कोई क्वेश्चन है? यस सर, मैं पूछना चाह रहा था जैसे जो HDFC और इनके जो कॉल्स आते हैं, हम्म इनके पास भी जो डेटाबेस अपना पहुंच चुका है, तो सर हम्म ये भी क्या डेटा ब्रीच जैसे ही कोई काम है कि नहीं है? सर, डेटा अगर आपका अकाउंट नहीं है और उनके पास आपका डेटा पहुंचा है तो कहीं ना कहीं से तो ब्रीच हुआ है। अगर आपका हाँ। अकाउंट है और उनके पास डेटा पहुंचा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आपका अकाउंट नहीं है वहां पर और कहीं हाँ। से भी आपको टेलीकॉल्स आ रहे हैं या मेल्स आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से तो आपका डेटा पहुंचा है उनके पास। ये कहाँ सर से? इनके वर्टिकल्स भी तो अलग अलग होते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड डिवीजन अलग है, हम्म जैसे अकाउंट्स अलग है। तो ये इंटरनली वो कर रहे हैं, तो वो भी कहलाएगा डेटा ब्रीच या नहीं कहलाएगा सेम ये कंपनी में? क्या है, देखिए अभी तक तो अभी डीपीडीपी एक्ट पूरी तरह से अप्लाई नहीं हुआ है। जब अच्छा। अप्लाई होगा तब वो कंसर्न लेंगे। ठीक है। कंसर्न लेंगे तब वो आपको बताएंगे कि हम डेटा आपका किस लिए यूज कर रहे हैं। मान लीजिए अगर वो कंसर्न में लिखते हैं कि वी आर यूजिंग योर डेटा फॉर द पर्पज ऑफ ओपनिंग ऑफ सेविंग अकाउंट, ओके। और वो अगर वो ओपनिंग ऑफ सेविंग अकाउंट लिख के आपको अगर क्रेडिट के लिए फोन लगा रहे हैं, तो डेट इज नॉट अ वैलिड थिंग।
जब आपने कंसर्न सेविंग अकाउंट के लिए ली तो आप फिर मुझे क्रेडिट के लिए क्यों फोन कर रहे हो? ठीक है। ठीक है, तो हमें 72 द कंपनी नोटिफाइड द डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड विद डिटेल्स ऑन द नेचर, स्कोप एंड लाइकली कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द ब्रीच। ये ड्राफ्ट रूल्स में लिखा है कि आपको अगर कोई ब्रीच होती है तो आपको 72 आवर्स के अंदर डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को बताना है क्या क्या नेचर, स्कोप एंड कॉन्सिक्वेंसेस। मतलब मैंने क्या करा, क्या गलती हुई मुझसे, उस गलती का स्कोप कहां तक गया और उससे क्या नुकसान हुआ। विदाउट डिले यूजर नोटिफिकेशन, आपको जो यूजर है, डेटा प्रिंसिपल है, उसको भी बताना है कि साहब मैंने आपका डेटा गलत हाथों में दे दिया है। इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं कही उन्होंने, पर इसे कहा है विदाउट डिले। फिर रेमेडियल एक्शंस, आपको उसके बाद रेमेडियल एक्शंस भी कर देने हैं कि आप इसमें सुधार कैसे कर सकते हैं। अब राइट्स ऑफ डेटा विकास भाई, प्रिंसिपल। हाँ सर। है ना, जब भी जैसे फॉर एग्जांपल अपन डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, हम्म। वो 40-50 पेज का फॉर्म होता है। यस। उसमें पता नहीं कितनी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। यस उसमें अगर वो टर्म्स एंड कंडीशन ऑलरेडी डिफाइन है कि हम लोग आपका डेटा यूज कर सकते हैं। सर, इसमें एक अपने लाइन थी, अपन ने पढ़ी थी, कंसेंट मस्ट बी क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। सर उसमें लिखी हुई होगी, कंसेंट हाँ स्पेसिफिकली हाँ लिखी होगी। हाँ, पर सर कंसेंट को उनमें ऐसी जगह नहीं, आप 40 पेज के फॉर्म में कंसेंट कहीं किसी कोने में नहीं फंसा सकते हो। ठीक है। आपको कंसेंट कहीं भी ऐसी जगह दिखानी पड़ेगी जहां पर वो पूरी तरह से स्पेसिफिक हो और विजिबल हो। सर अपन इसको ऐसे करते हैं, जो मेरी लास्ट कंसेंट है या फर्स्ट कंसेंट है या पहली 10 कंसेंट है, उसमें हम्म। उन्होंने अगर स्पेसिफिकली मेंशन कर होगी, रखी होगी। और जनरली हम लोग क्या करते हैं, जब भी कुछ भी अकाउंट ओपन करते हैं, चाहे सेविंग अकाउंट हो, हम्म। चाहे डीमैट का अकाउंट हो, चाहे कोई भी अकाउंट हो, हम लोग तो सिर्फ साइन करने में रहते हैं। हम्म। तो वो तो कंसेंट वैसे ही आ गई। सर वो होता यही है, कल मैं परसों एक बैंकर से बात कर रहा था तो इसी डीपीडीपी एक्ट पे ही हम चर्चा कर रहे थे। मैंने बोला अभी तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, जिस दिन ये एक्ट लागू हो जाएगा ना देश में, उस दिन आप बहुत परेशानी में आ जाओगे। तो वो बोले सर मैंने, आप कैसे करोगे? तो उन्होंने जो आप बता रहे हैं ना सर, उन्होंने वही आइडिया दिया। बोले सर हम अकाउंट ओपन फॉर्म जो खोलते हैं हमारा, अकाउंट ओपन फॉर्म में 4 लाइनें और लिख देंगे कि यूजर इज गिविंग इज कंसर्ट इन द वेरीफाइबल मैनर, कंसर्ट इज ऑब्टेन्ड इन अ फ्री एंड हैज इन अ फ्री एंड अनकोerशन फ्री मैनर, एंड द डेटा विल बी यूज फॉर द स्पेसिफाइड पर्पस, and the person has the right to revoke consent when he is not satisfied or he does not require our services। ये उन्होंने खुद ने बोला कि सर हम हमारे फॉर्म में ये 4 लाइनें और ऐड कर देंगे। तो प्रैक्टिस में भी सर यही होगा। सर एक क्योंकि, स्लाइड और पीछे अगर चलेंगे एक बार, हाँ बोलिए ना सर, कौन सी साइड पे चलना है? इससे जस्ट पहले वाली स्लाइड। 16। हाँ, नहीं, इसके आगे वाली। ये वाली। सर इसमें जो डेटा ऑडिट्स है, हम्म। यहाँ पे अपन क्या प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट? सर डेटा ऑडिट्स में अभी एक्ट में इन्होंने कहीं भी नहीं ऐसा लिखा है कि डेटा ऑडिट विल बी कंडक्टेड बाय हूम। बट जब भी डेटा ऑडिट आएगा, सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट में से सिर्फ डेटा ऑडिट ही नहीं, हमारे पास और भी अपॉर्चुनिटी है। जैसे डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर जो सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशियरी अपॉइंट करेगा, डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर भी हम बन सकते हैं। फिर कंसल्ट मैनेजर भी हम बन सकते हैं। कंसल्ट मैनेजर में एक रिक्वायरमेंट ये है कि इट शुड बी अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, जो कंसर्न मैनेजर की पहली रिक्वायरमेंट है। प्लस उनकी जो कंसर्न मैनेजर की जो नेटवर्थ होगी वो मिनिमम 2 करोड़ रुपीज होगी। इस पे भी अपन बात करेंगे आगे। सर इस मतलब मेरा एक इसमें एडिशन है कि जब भी इस पर्टिकुलर एक्ट को लेकर स्टेक होल्डर से फीडबैक मांगा जाए, हम्म। एज ए बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हम लोगों को फीडबैक देना चाहिए कि आप डेटा ऑडिट्स एवं कस्टोडियन हो, चाहे डेटा प्रोटेक्शन मैनेजर हो, वहां पर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को इन्वॉल्व करें, बिकॉज दे हैव स्पेशल एबिलिटी। एंड उन लोग जो लोग डिसा कर चुके हैं, बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो हम लोगों को देना चाहिए। सब जनता को मिलकर जब देंगे, रिजल्ट कुछ ना कुछ तो आएगा। बिल्कुल आएगा सर, और प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी भी बहुत क्रिएट होगी, क्योंकि हो सकता है डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर हर इंसान अपॉइंट नहीं करे, डेटा ऑडिट हर इंसान नहीं कराए, क्योंकि ये सिर्फ सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशियरी के ऊपर लगता है। लेकिन सर कंसल्ट मैनेजर और डेटा ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर, ये दो वो चीजें जो हर डेटा फिड्यूशियरी को करना पड़ेगा। हम डेटा ग्रीवेंस ऑफिसर पे भी हम बात करेंगे, हम आ रहे हैं उस पे भी हम बात करेंगे। ये वो दो चीजें हैं जो हर एंटिटी को करनी पड़ेगी। क्योंकि सर लीगली ओडीटी एप्लीकेबल हो ना हो, लेकिन अगर हम क्लाइंट को उसके बेनिफिट दिखाएंगे ना कि आपका डेटा कितना इंपॉर्टेंट है, उससे क्या बेनिफिट इस रूट्स का, राइट, तो नो डाउट वो वॉलंटरी भी करा सकते हैं। सही बिल्कुल। है, सही है। फिर एज अ डेटा प्रिंसिपल हमारे क्या राइट है? मतलब हम एज अ डेटा प्रिंसिपल तो हम दिन में 25 जगह हमारा डेटा देते हैं। तो सेक्शन 11 to 14 बात करता है राइट टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन। सेक्शन 11 है राइट टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब हुआ? एग्जाम्पल देता हूं मैं कि अनीता रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एसबीआई अबाउट व्हाट पर्सनल डेटा दे होल्ड, विद इन 7 days एसबीआई प्रोवाइडेड अ कॉम्प्रहेंसिव रिपोर्ट।
तो आपका अगर कोई डेटा है किसी भी एंटिटी के साथ और आपको जानना है कि इन्होंने मेरा क्या डेटा स्टोर कर रखा है, तो आप उनसे रिपोर्ट मांग सकते हैं। फिर है राइट टू नॉमिनेट। सेक्शन 14 बोलता है ये कि हम हमारे राइट्स को एक्सरसाइज करने के लिए किसी भी अनदर इंडिविजुअल को नॉमिनेट कर सकते हैं। अगर हमारी डेथ हो गई हो तो नॉमिनेट डेथ के पहले करना पड़ेगा, और इनकेपेसिटी अगर हम इनकेपेबल हो गए हैं तो, ताकि वो हमारे राइट्स एक्सरसाइज कर पाए। फिर है राइट टू करेक्शन एंड इरेजर, सेक्शन 12। यानी मान लीजिए मैंने कहीं मेरा एड्रेस दिया, अब मेरा एड्रेस चेंज हो गया है, तो वो मेरा राइट है कि मैं उन्हें बोलूं कि साहब अब मेरा एड्रेस आउटडेट हो चुका है और आप इसको नया एड्रेस अपडेट करिए। फिर राइट टू इरेजर, मान लीजिए आई आई मेड अ शॉपिंग फ्रॉम ए एक्स वेबसाइट, आई थिंक दैट आई डोंट रिक्वायर दिस वेबसाइट एनी मोर, आई एम नॉट गोइंग टू शॉप नेक्स्ट टाइम फ्रॉम दिस वेबसाइट, so I can request them to, sir, please delete my data. I am not making another purchase from your website, so they will have to do so, right? इसमें वो सिर्फ वो ऐसी डेटा लिखेंगे, ऐसी ही डेटा रख सकते हैं जो उन्हें टैक्स कंप्लायंस के लिए जरूरी है। फॉर एग्जांपल इनवॉइस वो डिलीट ना करे तो चलेगा, क्योंकि इनवॉइस उन्हें उनके टैक्स कंप्लायंस में रिक्वायर्ड रहेगा। देन इज राइट टू ग्रीवेंस रिड्रेसल। ये जो हम बात कर रहे थे ना धवल सर आपसे, ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर की जो हमने बात करी थी, राइट टू रजिस्टर ग्रीवेंसेस विद द डेटा फिड्यूशियरीज ग्रीवेंस ऑफिसर एंड रिसीव टाइमली रेजोल्यूशन और एस्केलेट टू डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड। जब भी आपकी कोई कंप्लेन है तो आप डायरेक्ट बोर्ड के पास नहीं जाएंगे, ये इसका नियम है। पहले आपको जाना पड़ेगा डेटा फिड्यूशियरी के ग्रीवेंस ऑफिसर के पास। अगर वो ग्रीवेंस ऑफिसर आपकी ग्रीवेंस के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है, कोई सॉल्यूशन नहीं दे पा रहा है, फिर आपको डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के पास जाना है। यू कैन नॉट डायरेक्टली अप्रोच द डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड, है ना। तो डेटा ग्रीवेंस ऑफिसर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो हर एंटिटी को लगेगा। इसके लिए हम सभी को तैयार रहना चाहिए। लाइक बैंकिंग ऑम्बड्समैन हो गया। हाँ। फिर है सर ग्रीवेंस रिड्रेसल, सेक्शन 13 जो सर बात कर रहे थे। सबसे पहले होती है इनिशियल कंप्लेंट, कि हमको जो शुरुआती कंप्लेंट है वो हमें डेटा जुडिशरी के डेजिग्नेटेड ग्रीवेंस ऑफिसर से करनी है। ये पहली कंप्लेन हमारी उसी से जाएगी। जुडिशरी रिस्पॉन्स, डेटा जुडिशरी है जो हमारी कंप्लेन को एक्नॉलेज करे कि भैया मेल करे कि हमको मेल मिल चुका है कि आप हमसे हमारी आपकी कंप्लेन है, और वो उस कंप्लेन को इफेक्टिव टाइम पीरियड में रिजॉल्व करने की कोशिश करें। अगर ग्रीवेंस ऑफिसर के कामकाज से हम खुश नहीं है, उन्होंने हमारी कंप्लेन रिजॉल्व नहीं करी है, हमारी पीड़ा अभी भी वैसी की वैसी ही है, तो हम बोर्ड से अपील कर सकते हैं। इफ अनसेटिस्फाइड विद जुडिशरीज रिस्पॉन्स, डेटा प्रिंसिपल मे फाइल कंप्लेंट विद द डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड, है ना। एंड बोर्ड क्या करेगा, बोर्ड इंक्वायरी करेगा, दोनों पक्षों को बुलाएगा, डेटा प्रिंसिपल को भी बुलाएगा और आपके ग्रीवेंस ऑफिसर को भी बुलाएगा, जुडिशरी को भी बुलाएगा, और वो डिटरमाइन करेगा कि इसमें क्या वो फैसला ले सकता है या इसमें क्या पेनल्टी लगा सकते हैं। ड्यूटीज ऑफ द डेटा प्रिंसिपल, ये हमारी ड्यूटीज है। डेटा प्रिंसिपल हम सभी हैं, ये हमारी ड्यूटीज है। क्या है, सेक्शन 15 हमारी ड्यूटी बात करता है एक्यूरेसी ऑब्लिगेशन, कि हमने जो डेटा दिया है वो सही दिया है, ये हमारी जवाबदारी है। लेजिटिमेट कंप्लेंट्स, अगर हम कोई शिकायत कर रहे हैं या डेटा फिड्यूशियरी से या डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड से, तो वो शिकायत जेन्युइन होनी चाहिए, शुड नॉट बी फ्रिवलस और वेक्सेशियस, किसी को परेशान करने के उद्देश्य से नहीं होनी चाहिए। कंप्लायंस विद कंडीशंस, कि हम हमारे जितने जो भी लॉज एप्लीकेबल है उससे कंप्लाई करें। प्रोसेसिंग आउटसाइड इंडिया, सेक्शन 16, हमने इसके बाद में पहले भी बात करी है। द एक्ट एक्सटेंड्स टू द प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल पर्सनल डेटा आउटसाइड इंडिया इफ सच प्रोसेस इज इन कनेक्शन विद एक्टिविटी रिलेटेड टू ऑफरिंग गुड्स और सर्विसेज टू डेटा प्रिंसिपल्स विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। Simple example, I ordered a shoe from Walmart. So Walmart is an entity located outside India. But since I am the person who is the recipient of goods or services, and goods or services will be delivered in India, so the TPDP Act will be applicable to this transaction also. इसका फायदा क्या है? Ensures protection for Indian citizens data globally. हमको बाहर भी इसका इसका सिक्योरिटी मिल रही है, और इसका फायदा ये कि दिस प्रोविजन इंश्योर्स दैट इंडियन सिटीजंस डेटा इज प्रोटेक्टेड रिगार्डलेस ऑफ वेयर इट इज प्रोसेस्ड। मतलब मेरा डेटा अगर वॉलमार्ट भी प्रोसेस कर रहा है तो भी उसको मेरा डेटा प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, तो भी ये कंसर्न और सारे जो मैकेनिज्म्स है वो उनको फॉलो करने पड़ेंगे। नेक्स्ट इज की एग्जम्पशंस, जो हमने पहले भी थोड़ा सा इस पे हमने रिव्यू लिया था। सेक्शन 17 में एग्जम्पशन की बात होती है, लीगल एंड जुडिशियल एग्जम्पशंस। अगर हम किसी कोर्ट के ऑर्डर के तहत या कोई इमरजेंसी के तहत किसी डेटा को यूज कर रहे हैं तो उसमें हमें कंसेंट की जरूरत नहीं है। अगर हम स्टैटिस्टिकल पर्पस के लिए या किसी प्रिवेंशन या डिटेक्शन ऑफ ऑफेंस के लिए कर रहे हैं तो हमें कंसेंट की जरूरत नहीं है।
और इस एक और जगह है प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डेटा ऑफ डेटा प्रिंसिपल्स आउटसाइड इंडिया परसुएंट टू कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू विद पर्संस आउटसाइड इंडिया। यानी अगर डेटा प्रिंसिपल भी आउटसाइड इंडिया है, डेटा फिड्यूशियरी भी आउटसाइड इंडिया है, तो डीपीडीपी एक्ट अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन नहीं बनेगा। दोनों आउटसाइड इंडिया है, डेटा प्रिंसिपल और डेटा फिड्यूशियरी दोनों आउटसाइड इंडिया है। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी एक एग्जम्पशन है। जैसे हम बैंक में, हमने बैंक से लोन ले रखा है और हम उस बैंक से लोन लेने के बाद हम डिफॉल्टर हो गए, तो इसके लिए उन्होंने बैंक को एक एडवांटेज दे रखा है, प्रोसेसिंग टू असर्टेन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ लोन डिफॉल्टर। बैंक अगर मेरे डेटा का यूज करके मेरे असेट्स एंड लाइबिलिटीज का पता लगा रही है, सिविल रिपोर्ट चेक कर रही है, या किसी अन्य माध्यम से मेरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पता कर रही है कि वाई आई एम नॉट रिपेइंग दिस, तो वो एक्ट के वायलेशन नहीं है, इट इज विद इन द एक्ट, बिकॉज दिस एग्जम्पशन स्पेसिफिकली प्रोटेक्ट्स रिकवरी प्रोसेस फ्रॉम जनरल रिस्ट्रिक्शंस। क्योंकि अगर इतनी सारी रिस्ट्रिक्शन अगर रिकवरी प्रोसेस में लगा दी जाए कि बैंक कोई भी इंफॉर्मेशन बिना बोरोवर के एक्सेस नहीं कर पाएगा, तो उनकी रिकवरी प्रोसेस बहुत डिले हो जाएगी, बहुत स्लो हो जाएगी। फिर इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं हम, एग्जम्पशंस एंड लिमिटेशंस जो है उनके। इमरजेंसी सर्विसेज का एग्जांपल ये है कि मान लीजिए ड्यूरिंग द फ्लड्स इमरजेंसी सर्विसेज एक्सेस लोकेशन डेटा फ्रॉम टेलीकॉम प्रोवाइडर्स विदाउट एक्सप्लिसिट कंसेंट टू आइडेंटिफाई पीपल ट्रैप्ड इन फ्लड एरियाज, सेंड टारगेटेड इवैक्यूएशन अलर्ट्स टू स्पेसिफिक रीजन्स, कोऑर्डिनेट रेस्क्यू ऑपरेशंस। मान लीजिए कहीं फ्लड आ गई, तो जो इमरजेंसी सर्विसेज वाली टीम है वो जो लोकेशन एक्सेस करेगी डेटा, जो जो भी वहां पे फ्लड में पीड़ित लोग हैं उनका जो वो डेटा एक्सेस करेगी, लोकेशन एक्सेस करेगी, वो विदाउट कंसेंट ही करेगी, ताकि जो लोग फ्लड में फंसे हैं वो उनको निकाल सके, वो उन्हें पहचान सके, फिर उन्हें निकाल सके और उनके लिए वो रेस्क्यू ऑपरेशंस डिजाइन कर सके। फिर लॉ इन्फोर्समेंट एग्जाम्पल क्या है? सपोज पुलिस कोई साइबर क्राइम का केस इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो किसी फिनटेक ऐप के साथ अगर कोई साइबर क्राइम हुआ है, तो पुलिस हैज ऑल द राइट टू गेट द यूजर डेटा फ्रॉम फिनटेक ऐप विदाउट एक्सप्लिसिट कंसेंट ऑफ द यूजर्स, बिकॉज क्योंकि वो उसको लॉ, एक क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए यूज कर रहे हैं और उसके लिए उनके पास लीगल बैकिंग है और उनके पास एग्जैक्ट डेटा पॉइंट्स भी है कि हमें किस किस लोगों का डेटा चाहिए। रिसर्च एग्जम्पशन का एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल, जब कोविड हुआ था तो कोविड में बहुत सारे जो कोविड अफेक्टेड पेशेंट्स थे उनकी जो रिपोर्ट्स थी वो रिसर्च पर्पसेस के लिए यूज की गई थी कि इस कोविड के बाद इन्हें क्या मेडिकल रिक्वायरमेंट्स आ सकती है या इनके साथ क्या मेडिकल रिपरकेशंस हो सकते हैं। तो ये जो एग्जाम्पशन दिया है ये सर पब्लिक हेल्थ इंटरेस्ट के लिए दिया गया है, क्योंकि इससे पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो बना रहता है और इससे कोई नुकसान नहीं होता है। Because getting consent was not practical. Thousands of patients थे जिन्हें कोविड हुआ था, उस हालात में उनकी कंसर्न लेना प्रैक्टिकल नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट पावर्स एंड प्रोसीजरल फ्रेमवर्क ऑफ बोर्ड, ये है डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड जो पूरे एक्ट को देखेगा। स्टैब्लिश कैसे होगा? सेक्शन 18 बोलता है क्रिएटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी कि ये बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट होगा और यहाँ यहाँ होगा। जैसे अन्य जगह भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करे हैं। फिर ये एक बॉडी कॉर्पोरेट होगा विद परपेचुअल सक्सेशन, बॉडी को एक कंपनी फॉर्म में होगा और परपेचुअल सक्सेशन यानी अंत तक चलेगा। लीगल पावर्स टू अक्वायर प्रॉपर्टी, एंटर कॉन्ट्रैक्ट्स, इनके पास पावर होगी कि ये प्रॉपर्टी खरीदे, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो। कैन सू एंड बी सूड इन इट्स नेम, आप इन्हें सू भी कर सकते हैं और ये खुद भी आपको सू कर सकते हैं, ये पावर रहेगी इनके पास। हेडक्वार्टर लोकेशन जो होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी कि हमें इन्हें कहाँ हेडक्वार्टर करेंगे। फिर पावर और फंक्शंस जो है बोर्ड के वो सेक्शन 27 में दिए गए हैं। सेक्शन 27 भी बहुत काम का है हमारा। क्या है? एड्रेस पर्सनल डेटा ब्रीचेस विद रेमेडियल मेजर्स। मैंने बताया था कि हम जो भी कंप्लेंट करेंगे पहले डेटा फिड्यूशियरी को करेंगे, और डेटा फिड्यूशियरी अगर हमें संतुष्ट नहीं कर पाया ग्रीवेंस ऑफिसर उसका, तो हम बोर्ड में कंप्लेन करेंगे, है ना। साथ में हमें इंटीमेशन देना है पर्सनल डेटा ब्रीच का, डेटा प्रिंसिपल को भी देना है और बोर्ड को भी देना है। तो ऐसा जितने भी पर्सनल डेटा ब्रीचेस आएगी इनके पास, ये उसका रेमेडियल मेजर्स के साथ समाधान करने की कोशिश करेंगे। जो कंप्लेंट्स इन्हें रिसीव हुई है डेटा प्रिंसिपल्स की, ये उस पर इन्वेस्टिगेट करेंगे और उस पर अपना ऑर्डर देंगे। मॉनिटर कंसर्ट मैनेजर कंप्लायंस, जो कंसर्ट मैनेजर की हमने बात करी है, कंसर्ट मैनेजर कंप्लाई कर रहा कि नहीं कर रहा है एक्ट के हिसाब से, ये देखेंगे। इश्यू बाइंडिंग डायरेक्शंस आफ्टर प्रोवाइडिंग हियरिंग अपॉर्चुनिटी,
ये कोई भी बाइंडिंग डायरेक्शन इशू करने से पहले हियरिंग अपॉर्चुनिटी जरूर देंगे, और मॉडिफाई, सस्पेंड और विड्रॉ डायरेक्शंस एज नीडेड। इनका खुद का कोई भी डायरेक्शन ये मॉडिफाई कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं और विड्रॉ कर सकते हैं जैसी इनको आवश्यकता हो। प्रोसीजरल फ्रेमवर्क सेक्शन 28, फंक्शंस एज इंडिपेंडेंट डिजिटल फर्स्ट ऑफिस। ये एक बहुत बड़ा मजेदार पॉइंट है, इंडिपेंडेंट डिजिटल फर्स्ट ऑफिस, यानी इस ऑफिस में कुछ भी फिजिकली एक्सेप्ट नहीं होगा। जो भी यहाँ पे कंप्लेन आएगी वो भी डिजिटली आएगी, जो भी कंप्लेन के ऊपर रेजोल्यूशन होगा वो भी डिजिटली होगा, जो भी कंप्लेंट की सुनवाई होगी वो भी डिजिटल होगी। पूरी तरह से डिजिटल फर्स्ट ऑफिस रहेगा, कहीं भी आपको इसमें फिजिकल इंटरफेस नहीं दिखेगा। डिटरमाइन सफिशिएंसी ऑफ ग्राउंड्स बिफोर प्रोसीडिंग। आपको इनको देखना है कि अगर ये किसी भी कंप्लेन के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं तो वेदर सफिशिएंट ग्राउंड्स है उस पर प्रोसीड करने के लिए, और ये कार्रवाई करेंगे तो वो उचित होगी। फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, इन्हें नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी देना है सामने वाले को, उसको सुनने के बाद ही अपना फैसला देना है। possesses civil court powers for summoning and evidence collection। सिविल कोर्ट के पावर है इनके पास फॉर समोनिंग एंड एविडेंस कलेक्शन, यानी कि ये किसी को भी इनके ऑफिस में कॉल कर सकते हैं और एविडेंस कोई सा भी कॉल कर सकते हैं। मे इश्यू इंटरिम ऑर्डर्स ड्यूरिंग इंक्वायरी विद रिटर्न जस्टिफिकेशन। मान लीजिए कोई इंक्वायरी चल रही है और इनको लगता है कि इंक्वायरी फिनिश होने में थोड़ा टाइम लगेगा या इंक्वायरी लंबी चलेगी, तो व्हाट कैन दे डू, दे कैन इश्यू इंटरिम ऑर्डर्स ड्यूरिंग इंक्वायरी विद रिटर्न जस्टिफिकेशन। रिटर्न जस्टिफिकेशन इनको देना है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। की प्रोविजंस फॉर डेटा प्रोटेक्शन अपील्स एंड अंडरटेकिंग्स। अपील क्या है? अपेलेट प्रोसेस जो है वो सेक्शन 29 में दी गई है। अपील किस में करोगे? अपील आप डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के ऑर्डर के अगेंस्ट करोगे। किसको करोगे? ट्रिब्यूनल को करोगे। कब करोगे? अपील मस्ट बी फाइल्ड विद इन 60 डेज ऑफ रिसीविंग बोर्ड्स ऑर्डर टू ट्रिब्यूनल। आपको जिस दिन बोर्ड का ऑर्डर रिसीव हुआ उसके 60 दिन के अंदर आपको अपील करनी है ट्रिब्यूनल के अंदर। लेट अपील्स में बी एक्सेप्टेड विद सफिशिएंट कॉज। अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कि कोई आपका सफिशिएंट कॉज था जिसके कारण आप लेट हुए हो तो ट्रिब्यूनल कैन एक्सेप्ट द लेट अपील ऑल्सो। ट्रिब्यूनल मस्ट अटेम्प्ट टू रिजॉल्व अपील्स विद इन 6 मंथ्स। नाउ इसमें क्या लिखा है? ट्रिब्यूनल मस्ट अटेम्प्ट टू रिजॉल्व अपील्स विद इन 6 मंथ, यानी ट्रिब्यूनल ये बात की कोशिश करे कि 6 महीने के अंदर वो अपील को रिजॉल्व कर दे। डिजिटल बाय डिजाइन अप्रोच मैंडेटेड फॉर अपील्स प्रोसीजर। अपील के लिए भी आपको डिजिटल वे में ही प्रोसीड करना है। ऑर्डर्स आर एग्जीक्यूटेबल एज सिविल कोर्ट डिक्री। सेक्शन 30 में लिखा है कि ये ट्रिब्यूनल का जो ऑर्डर होगा वो सिविल कोर्ट के डिक्री के बराबर ही एग्जीक्यूट होगा। जैसे सिविल कोर्ट की डिक्री एग्जीक्यूट होती है वैसे ही इनका ऑर्डर भी एग्जीक्यूट होगा। अब वॉलेंटरी अंडरटेकिंग्स, ये एक बहुत स्पेशल फीचर है इस एक्ट का। सेक्शन 32 बोलता है एक्ट का वॉलेंटरी अंडरटेकिंग्स। व्हाट इज दिस वॉलेंटरी अंडरटेकिंग्स? ऑल्टरनेटिव टू फॉर्मल इन्फोर्समेंट प्रोसीडिंग्स। जो फॉर्मल इन्फोर्समेंट प्रोसीडिंग्स होती है उसकी जगह इन्होंने एक रास्ता निकाला वॉलेंटरी अंडरटेकिंग्स कि मे इंक्लूड अफर्मेटिव एक्शंस और कमिटमेंट्स टू रिफ्रेन। यानी अगर कोई प्रोसीडिंग में अगर ये किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप ये करेंगे तो वो वॉलेंटरी अंडरटेकिंग दे सकता है कि हाँ सर मैं ये करूंगा, या ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ये नहीं करेंगे, कमिटमेंट टू रिफ्रेन, तो ही और शी कैन गिव द वॉलेंटरी अंडरटेकिंग कि यस सर मैं ये नहीं करूंगा। टर्म्स कैन बी मॉडिफाइड विद कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज। अगर जिस पार्टी ने शिकायत करी है और वॉलेंटरी अंडरटेकिंग में कोई टर्म है तो उन पार्टी और जो अफेक्टेड पार्टी है वो दोनों की कंसेंट के साथ इसके टर्म्स मॉडिफाई हो सकते हैं बोर्ड के सामने। एक्सेप्टेंस बार फर्दर प्रोसीडिंग्स ऑन सेम मैटर। मान लीजिए मैंने किसी की कंप्लेन करी है डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड में, और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हियरिंग डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ने उनको वॉलंटरी अंडरटेकिंग दिया कि आप ऐसा करेंगे, और मैंने उनके सामने एक्सेप्ट किया कि हाँ आई एम हैप्पी विद द सॉल्यूशन कि ये ऐसा करेंगे और अब ये ऐसा काम नहीं करेंगे, देन आई कैन नॉट टेक द मैटर टू एनी अदर कोर्ट और एनी अदर अथॉरिटी फॉर द सेम मैटर। यानी अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि वो जो करना चाह रहे हैं उससे मैं संतुष्ट हूं, मैं वॉलेंट्री अंडरटेकिंग से आई एम सेटिस्फाइड, तो फिर मैं बाद में यूटर्न नहीं ले सकता हूं। मेरे को वॉलेंट्री अंडरटेकिंग में जो वो व्यक्ति कर रहा है उसको मानना पड़ेगा। ब्रीच ऑफ अंडरटेकिंग ट्रीटेड एज वायलेशन ऑफ द एक्ट। अगर वॉलेंट्री अंडरटेकिंग देने के बाद कोई उसका ब्रीच कर रहा है तो वो वायलेशन ऑफ द एक्ट है और इसकी बहुत हैवी पेनल्टी है जो हम आगे पढ़ेंगे। The appellate mechanism ensures judicial oversight while the voluntary undertaking provisions offer a flexible compliance pathway। अपीलेट मैकेनिज्म जो है वो हमें जुडिशियल ओवरसाइट देता है कि हम अगर डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है देन वी कैन फाइल एन अपील टू द ट्रिब्यूनल।
वाइल द वॉलंटरी अंडरटेकिंग प्रोविजन जो है वो फ्लेक्सिबल कंप्लायंस पाथवे देता है कि अगर दोनों पक्ष राजी हैं तो हम ये रास्ता निकाल सकते हैं। बोथ प्रोविजंस बैलेंस रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट विद प्रोसीजरल फेयरनेस फॉर डेटा फिड्यूशियरीज। Now, this is one of the most important part of this act, section 33, imposition of penalties. Penalties कैसी लगाई जाएगी? Determination of breach. The board may impose monetary penalties upon conclusion of an inquiry where a significant breach of the act or rule is determined. बोर्ड के पास पावर है कि वो मॉनेटरी पेनल्टीज लगाएगा। मॉनेटरी पेनल्टीज लगाएगा यानी सिर्फ मॉनेटरी पेनल्टीज की बात है, कहीं भी इन्होंने कोई क्रिमिनल इन्फोर्समेंट की बात नहीं करी है। यहाँ पर इन्होंने कहीं भी जेल वगैरह की बात नहीं करी है, कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी इंपोज नहीं करी है, सिविल लाइबिलिटी ही इंपोज कर रहे हैं एक्ट में। द एक्ट में बोर्ड में इंपोज मॉनेटरी पेनल्टीज कब करेगा? अपॉन कंक्लूजन ऑफ एन इंक्वायरी, जहां पर सिग्निफिकेंट ब्रीच ऑफ द एक्ट या रूल उन्हें लगाया कि हुआ है। Prior to imposing penalties, the person must be given an opportunity to be heard, respecting the principles of natural justice। ये एक बहुत बेसिक सी बात है कि आप prior to imposing penalty आपको उनको अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी सुनने की, ताकि नेचुरल जस्टिस के जो प्रिंसिपल है फॉलो हो जाए। अब असेसमेंट क्राइटेरिया किन फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए बोर्ड पेनल्टी लगाएगा? नेचर, ग्रेविटी एंड ड्यूरेशन ऑफ द ब्रीच। कैसा नेचर था, किस तरह का ब्रीच था, कितना सीरियस ब्रीच था, ग्रेविटी, एंड कितने समय तक भी ब्रीच रहा, ड्यूरेशन। टाइप एंड नेचर ऑफ पर्सनल डेटा अफेक्टेड, जो टाइप, किस टाइप का और किस नेचर का पर्सनल डेटा था जिस जो अफेक्ट हुआ है। रिपीटेटिव नेचर ऑफ द ब्रीच, अगर आप लगातार किसी सेफगार्ड के ब्रीच कर रहे हैं देन देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि मैक्सिमम पेनल्टी लग सकती है। फाइनेंशियल गेन और लॉस अवॉइडेंस रिजल्टिंग फ्रॉम ब्रीच, उस ब्रीच से आपको कितना फायदा हुआ है, फाइनेंशियल गेन हुआ है, या कितना आपका लॉस अवॉइड हुआ है ड्यू टू दैट ब्रीच। मिटिगेशन एक्शन टेकन इंक्लूडिंग टाइमलाइंस एंड इफेक्टिवनेस, अगर आपने ब्रीच के बाद कोई मिटिगेशन एक्शन लिए हैं विद इन द टाइमलाइन और वो इफेक्टिव लिए हैं तो हो सकता है बोर्ड आपकी पेनल्टी थोड़ी कम कर दे। प्रोपोर्शनलिटी इफेक्टिवनेस ऑफ पेनल्टी, ये बोर्ड का राइट है कि वो कितनी पेनल्टी लगाते हैं, जितनी और कितना उसकी इफेक्टिवनेस रहती है। लाइकली इम्पैक्ट ऑफ पेनल्टी ऑन द पर्सन, वो ये भी देखेंगे कि इस पेनल्टी का इस पर्सन के ऊपर लाइकली इम्पैक्ट क्या हो सकता है। नाउ दिस अगली जो स्लाइड है वो पूरे एक्ट की वो स्लाइड है जो आप देख के हैरान रह जाएंगे। तो अगली स्लाइड पे प्लीज बहुत ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करिएगा सभी। पेनल्टी शेड्यूल अंडर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, ये शेड्यूल है इनका। वॉयलेशन टाइप क्या है? फेलियर टू टेक रीजनेबल सिक्योरिटी सेफगार्ड्स बाय डेटा फिड्यूशियरी। डेटा फिड्यूशियरी कौन है? हु इज इंटरेस्टेड विद द डेटा बाय द डेटा प्रिंसिपल। मैक्सिमम पेनल्टी क्या है? अप टू 250 करोड़। अप टू 250 करोड़ इज द पेनल्टी अगर आपने रीजनेबल सिक्योरिटी सेफगार्ड नहीं फॉलो करे तो। ठीक है, फिर फेलियर टू नोटिफाई पर्सनल डेटा ब्रीच टू द बोर्ड और डेटा प्रिंसिपल, यानी मैंने अगर किसी डेटा प्रिंसिपल का डेटा किसी थर्ड पार्टी को दे दिया विदाउट द डेटा प्रिंसिपल कंसेंट देन दैट इज अ ब्रीच। अब वो ब्रीच हुआ है तो मैंने वो ब्रीच को ना तो बोर्ड को नोटिफाई करा ना मैंने डेटा प्रिंसिपल को नोटिफाई करा, तो उसकी कितनी पेनल्टी है? अप टू 200 करोड़। बस। अप टू 200 करोड़ इज द पेनल्टी। नॉन कंप्लायंस विद ऑब्लिगेशंस रिलेटेड टू चिल्ड्रंस डेटा। फॉर एग्जांपल, मेरे पास कोई क्लाइंट आए कि सर आई वांट टू क्रिएट अ माइनर ट्रस्ट। माइनर ट्रस्ट इज अलाउड इन इनकम टैक्स एक्ट जो हमने पढ़ा था एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। तो वो अगर चिल्ड्रन डेटा लाया है तो चिल्ड्रन डेटा के लिए पहला है कि मुझे वेरीफाइबल पेरेंटल कंसेंट लेना है। अगर मैंने वेरीफाइबल पेरेंटल कंसेंट नहीं लिया है देन आई एम लायबल फॉर अ पेनल्टी अप टू 200 करोड़। Then failure in observation of obligations relating to significant data fiduciary। significant data fiduciary हमने बात करी थी कि ये वो है जो बहुत लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा स्टोर करते हैं या जो सेंसिटिव डेटा अपने साथ रखते हैं। आई थिंक ऑल द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स विल बी कवर्ड अंडर दिस व्हेन दे विल बी नोटिफाइड। इनकी पेनल्टी है अप टू 150 करोड़। ब्रीच इन ऑब्जर्वेंस ऑफ द ड्यूटीज अंडर सेक्शन 15, डेटा प्रिंसिपल। एज अ डेटा प्रिंसिपल हम हमारा डेटा रोज बहुत सारी जगह शेयर करते हैं, तो हमारी क्या है, अगर हमने इनएक्यूरेट डेटा दिया है या हमने मिसलीडिंग डेटा दिया है
या अगर हमने कंप्लेन कर दी है डेटा बोर्ड को या डेटा फिड्यूशियरी को जो जो वेक्सेशियस हो या फ्रिवलस हो, तो हमारे ऊपर कितनी पेनल्टी है? अप टू ₹10,000। यही एक छोटी पेनल्टी है इस एक्ट में। ब्रीच ऑफ एनी अदर प्रोविजन ऑफ एक्ट और रूल्स मेड देयर अंडर, अगर इसका कोई भी एक्ट का कोई भी प्रोविजन या रूल का आपने ब्रीच किया है जो स्पेसिफिकली इन ऊपर की 5-6 कैटेगरीज में नहीं आ रहा है, तो अप टू ₹50 करोड़। फिर क्या है? ब्रीच ऑफ एनी वॉलेंटरली अंडरटेकिंग गिवन टू बोर्ड, अगर मैंने बोर्ड को कोई अंडरटेकिंग दिया है कि आई विल परफॉर्म दिस फंक्शन और आई विल नॉट परफॉर्म दिस फंक्शन, और मैंने उसका ब्रीच किया है, तो उसका क्या उन्होंने पेनल्टी डिसाइड किया है? अप टू द एक्सटेंट स्पेसिफाइड फॉर ब्रीच इन रिस्पेक्ट ऑफ विच प्रोसीडिंग स्टार्ट। मतलब जिस ब्रीच के कारण मेरी प्रोसीडिंग बोर्ड के सामने चल रही है, उस ब्रीच में जितनी पेनल्टी स्पेसिफाइड है, अगर मेरी सिक्योरिटी सेफगार्ड की चल रही है बोर्ड के सामने कंप्लेन, तो उसमें 250 करोड़ तक की पेनल्टी है। तो बोर्ड भी वॉलेंटरी अंडरटेकिंग को कंप्लाई नहीं करने के कारण मुझ पर 250 करोड़ की पेनल्टी इम्पोज कर सकता है। इसमें एक अच्छी बात है कि हर पेनल्टी में अप टू लिखा है। बस ये 250 करोड़ 200 करोड़ ये फ्लैट पेनल्टी नहीं है, इसमें अप टू लिखा है, बस एक ही अच्छी बात है। इट्स ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द अथॉरिटी। अब सिक्योरिटी सेफगार्ड एंड ब्रीच नोटिफिकेशन फेलियर्स, कुछ एग्जांपल के साथ हम बात करते हैं कि हमें क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें पेनल्टी लगवा सकती है। फेलियर टू इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी सेफगार्ड्स, इनकी पेनल्टी है मे एक्सटेंड टू 250 करोड़। सेक्शन 8 में होता है कि हमें सेक्शन 8 में स्पेसिफाइड है कि डेटा फिड्यूशियरी को सेफगार्ड रखने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, हेल्थ लिमिटेड फेल टू इनक्रिप्ट सेंसिटिव मेडिकल रिकॉर्ड्स ऑफ 3.2 मिलियन पेशेंट्स। इनके पास 3.2 मिलियन पेशेंट्स का डेटा था जो ये इनक्रिप्ट नहीं कर पाए, जिसको ये सिक्योर नहीं कर पाए, रिजल्टिंग इन अनऑथराइज्ड एक्सेस ड्यूरिंग अ साइबर अटैक। ठीक है, कंपनी थी, उसके पास 3.2 मिलियन पेशेंट्स का डेटा था जिसको उन्होंने इनक्रिप्ट नहीं किया प्रॉपर, उसके कारण उन्हें अनऑथराइज्ड एक्सेस हो गया साइबर अटैक जब उनके ऊपर हुआ। डिस्पाइट प्रायर सिक्योरिटी ऑडिट्स हाइलाइटिंग वर्नरेबिलिटीज, द कंपनी नेग्लेक्टेड। अब इनके साथ एक और पॉइंट क्या हो गया कि इनके पास पहले सिक्योरिटी ऑडिट इनका कभी हुआ होगा, उसमें भी ये वर्नरेबिलिटीज हाईलाइट की गई थी कि आपका इंक्रिप्शन प्रॉपर नहीं है, तो प्लगइन कंपनी ने नेग्लेक्ट किया और उन्होंने सेफगार्ड नहीं इंप्लीमेंट करे, तो ऐसी स्थिति में इनको मैक्सिमम पेनल्टी जो 250 करोड़ की है वो भी लग सकती है। क्योंकि जब आपको बता दिया गया था कि आपकी वर्नरेबिलिटीज हैं और आपके ऊपर प्रॉपर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स नहीं है, तो फिर आपने उसको कंप्लाई क्यों नहीं किया। फेलियर टू नोटिफाई डेटा ब्रीच, ये बहुत सारों के साथ होगा। पेनल्टी में एक्सटेंड टू 200 करोड़। सेक्शन 8 में ही डेटा फिड्यूशियरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें डेटा ब्रीच रिपोर्ट करनी है, डेटा प्रिंसिपल को भी और डेटा बोर्ड को भी। एग्जाम्पल है, फाइनेंशियल सर्विसेज डिस्कवर्ड अ सिग्निफिकेंट ब्रीच अफेक्टिंग कस्टमर फाइनेंशियल डेटा बट कंसील्ड इट फॉर 65 days होपिंग टू रिजॉल्व इट इंटरनली। फाइनेंशियल सर्विसेज नाम की एक एंटिटी थी, उन्होंने एक सिग्निफिकेंट डेटा ब्रीच डिस्कवर किया कि उनके कस्टमर का फाइनेंशियल डेटा और कहीं भी शेयर हो रहा है, लेकिन इस बात को उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के बाहर नहीं जाने दिया और उसको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही 65 डेज तक छुपा के रखा, ये सोच के कि हम इसको इंटरनली सॉल्व कर लेंगे। यहाँ क्या होगा? अथॉरिटीज कैन इम्पोज सिवियर पेनल्टीज फॉर डिलिबरेट फेलियर टू नोटिफाई बोथ द बोर्ड एंड द अफेक्टेड कस्टमर्स विद इन द रिक्वायर्ड टाइम फ्रेम। सेक्शन 8 में रिक्वायरमेंट है सर डेटा फिड्यूशियरी की कि उसको अगर डेटा ब्रीच होता है तो उसको तत्काल प्रभाव से बोर्ड को बताना है। बोर्ड को बताने के लिए तो 72 आवर्स का टाइम रूल्स में भी उन्होंने मेंशन किया है, और विद इमीडिएट रिस्पॉन्स उनको डेटा प्रिंसिपल को बताना है। लेकिन इन्होंने ना तो डेटा प्रिंसिपल को बताया ना डेटा बोर्ड को बताया, और इन्होंने ये बात छुपा के रखी, तो ऐसे केस में इनके ऊपर 200 करोड़ का भी पेनल्टी लग सकता है। स्पेशल प्रोटेक्शन रिक्वायरमेंट चिल्ड्रन डेटा प्रोटेक्शन फेलियर की जो हमने बात करी थी, इसमें 200 करोड़ का पेनल्टी है मैक्सिमम, और ये सेक्शन 9 में है कि आपको चिल्ड्रन के लिए क्या क्या एडिशनल सेफगार्ड लेना है। फॉर एग्जाम्पल, इनोवेशन लॉन्च अ लर्निंग ऐप कलेक्टिव एक्सटेंशन बिहेवियर डेटा फ्रॉम यूजर्स अंडर 13 विदाउट एज वेरिफिकेशन मैकेनिज्म और पेरेंटल कंसेंट। एक इनोवेशन नाम की एंटिटी थी, उन्होंने एक लर्निंग ऐप लॉन्च करी जिससे बच्चे सीख पाए, बच्चे पढ़ पाए, और उन्होंने बहुत सारा बिहेवियरल डेटा कलेक्ट करा उसके यूजर से। अंडर 13 से कम के उम्र के बच्चों का उन्होंने डेटा कलेक्ट किया, दैट टू विदाउट एज वेरिफिकेशन और पेरेंटल कंसेंट। आपने ना तो पेरेंटल कंसर्न लिया, ना आपने पेरेंटल का एज वेरिफिकेशन किया, ना आपने बच्चों का एज वेरिफिकेशन किया। इस कारण आपने चिल्ड्रन के लिए जो सेफगार्ड लेने हैं आपने उनका वायलेशन किया है। यू हैव वायलेटेड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एक्ट एंड देयरफॉर द पेनल्टी मे एक्सटेंड टू 200 करोड़ रुपीस।
सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशियरी वायलेशंस क्या है? मे एक्सटेंड टू 150 करोड़। सेक्शन 10 में हमने पढ़ा था सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशियरी की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जैसे उन्हें डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ता है, उन्हें डेटा ऑडिट करना पड़ता है, उन्हें डेटा इम्पैक्ट असेसमेंट करवाना पड़ता है। तो यहाँ क्या हुआ, कनेक्ट एक सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशियरी था जो बहुत सारे डेटा प्रोसेसिंग करता था विद ओवर 50 मिलियन इंडियंस, है ना, मतलब करोड़ों लोगों की वो डेटा प्रोसेसिंग करता था। उसने फेल टू कंडक्ट मैंडेटरी डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट बिफोर लॉन्चिंग द न्यू एआई ड्रिवन फीचर्स। उन्होंने क्या किया, डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट, जो बात जो हमने एक कैब ऑपरेटर की बात करी थी कि वो लोकेशन पैटर्न जब देख रहे थे तो उन्हें डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट जब उन्होंने कराया तो उन्होंने रियलाइज किया कि हम इसकी लोकेशन को स्पेसिफिक एकदम एग्जैक्ट लोकेशन ना बताए और इसको थोड़ी सी जनरल लोकेशन दे। तो वैसा इन्होंने कोई डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं परफॉर्म किया और इस कारण इनके ऊपर 150 करोड़ तक की पेनल्टी लग सकती है। Additional violations and compliance requirements. What are these additional violations and compliance requirements? Breach of duties of data principal. As a data principal, we provide our data to at least 10-15 persons every day. And if we provide the data in incorrect or misleading data, or if we file vexatious complaints with the data fiduciary officer or the grievance redressal officer or the data principal or the data board, then we are liable for a penalty which may extend to 10,000 rupees. एग्जाम्पल, मेकिंग अ फॉल्स और फ्रिवलेस कंप्लेंट टू द बोर्ड और द डेटा फिड्यूशियरी। आप अगर कोई झूठी या वेक्सिशियस कंप्लेंट करते हैं तो हमें इस पर 10,000 रुपीज तक की पेनल्टी लग सकती है। अदर वायलेशंस क्या है? अदर वायलेशंस में लिखा है पेनल्टी में एक्सटेंड टू ₹50 करोड़। जो और कहीं भी कवर नहीं हो रहा है वो इसमें कवर हो जाएगा। लीगल बेसिस है एनी अदर प्रोविजंस। एग्जांपल, अगर बोर्ड ने आपको कोई डायरेक्शंस दिया है, फेलियर टू कंप्लाई विद द डायरेक्शंस ऑफ द बोर्ड। अगर बोर्ड का कोई डायरेक्शन है कि आपको ऐसा करना है और आपने उसको कंप्लाई नहीं किया है तो वहां पर वो 50 करोड़ की पेनल्टी आपको लगा सकते हैं। ब्रीच ऑफ वॉलेंट्री अंडरटेकिंग, जो हमने बात करी थी कि अगर वॉलेंट्री अंडरटेकिंग हमने बोर्ड के सामने दी है कि सर हम ऐसा करेंगे या हम ऐसा नहीं करेंगे, तो इसमें क्या पेनल्टी है, अप टू द एक्सटेंट एप्लीकेबल फॉर द ओरिजिनल ब्रीच। अगर वो ओरिजिनल ब्रीच सिक्योरिटी सेफगार्ड की है तो जो सिक्योरिटी सेफगार्ड में अमाउंट है वो लगेगा। अगर वो चिल्ड्रन डेटा प्रोटेक्शन वाली है तो उसमें जो अमाउंट है वो लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, Secure submitted a voluntary undertaking to implement enhanced security protocols over a minor data इंसिडेंट। उनके साथ एक माइनर इंसिडेंट डेटा इंसिडेंट हुआ था तो उन्होंने एक वॉलंटरी अंडरटेकिंग दी कि सर हम एक एनहांस सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करेंगे, प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट करेंगे। हाउएवर दे फेल टू मीट द कमिटेड इंप्लीमेंटेशन टाइम। अब ये जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जो सेफ गार्ड्स में आएगा, तो सेफ गार्ड्स की कितनी थी, 250 करोड़। तो ये 250 करोड़ वाली में आएगा कि उन्होंने वॉलंटरी अंडरटेकिंग दी कि हम एनहांस सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स implement करेंगे, but they fail to do so, failing which the board has the power to impose penalties up to 250 crores on them. Very high penalties. Section 39, bar of jurisdiction. Now, what is this bar of jurisdiction? Bar of jurisdiction means the cases where there is exclusive authority of the board. Civil courts are expressly prohibited from entertaining any suit or proceeding regarding matters for which the Data Protection Board has been empowered under this Act. अगर इस एक्ट के अंदर किसी भी मैटर के लिए डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को पावर किया गया है, एम्पावर किया गया है कि डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड विल डिसाइड ऑन दिस मैटर, देन यू कैन नॉट अप्रोच सिविल कोर्ट बिकॉज डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड हैज एक्सक्लूसिव अथॉरिटी अंडर दिस एक्ट। इंजेक्शन प्रोहिबिशन, आपका कोई कहीं केस चल रहा है डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड में और आपको लगता है कि कहीं से मैं इंजेक्शन ले लूँ या स्टे ले लूँ, तो वो भी नहीं होगा। No court or other authority may grant injunctions with respect to actions taken or to be taken in pursuance of powers granted under this act. कोई भी कोर्ट या कोई भी अथॉरिटी ना तो इंजेक्शन ग्रांट करेगी ना ही कोई भी ऐसा एक्शन लेगी जो इस एक्ट के पावर्स के अंदर दिया गया है। लीगल इम्प्लीकेशन क्या है, इससे फायदा क्या है? द प्रोविजन क्रिएटेड स्पेशलाइज्ड जुरिसडिक्शन that prevents forum shopping and ensures consistent application of data protection principles through a dedicated authority with subject matter expertise. इसका रीजन ये है कि एक तो कोई भी व्यक्ति ये कोशिश ना करे कि मेरी उस कोर्ट में मेरा काम हो सकता है तो मैं उस कोर्ट में अप्रोच करूं। पहला रीजन तो ये कि फॉरम शॉपिंग उससे अवॉइड की जाए। दूसरा कि जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है वो ऐसी अथॉरिटी हो जिसको सब्जेक्ट मैटर का एक्सपर्टीज हो। This ouster clause significantly strengthens the board enforcement capabilities by ensuring that decisions cannot be
easily challenged in civil court, thereby creating a streamlined regulatory environment for data protection matters in India। ये जो लाइन है इसने बोर्ड को अनफेटेड पावर्स दे दिए हैं, बिकॉज जहां बोर्ड के पावर है वहां कोई भी दूसरी अथॉरिटी या कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर पाएगी। Power to make rules. Now, the rule making authority for this act, the rule making authority for this act is undoubtedly the central government. The central government is empowered to establish rules through notification subject to prior publication that are consistent with the act's provision. सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि वो रूल स्टैब्लिश करे नोटिफिकेशन के साथ डेट आर कंसिस्टेंट विद द एक्ट प्रोविजन। अभी उन्होंने ड्राफ्ट रूल्स स्पेसिफाई करे हैं 2025 में, जो पब्लिक कमेंट्स के लिए अवेलेबल है। अगर हम में से किसी का भी कोई इस पे कमेंट हो या कोई ऑब्जर्वेशन है तो वी कैन राइट टू द गवर्नमेंट। This rule serve as the detailed implementation framework for operationalizing the act broader principles and requirements। ये जो एक्ट होंगे, ये जो रूल्स होंगे, ये डिटेल इंप्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क बताएंगे कि कैसे हम इस एक्ट के जो ऑपरेशनलाइजेशन है वो इसके प्रिंसिपल्स के हिसाब से करे जाए, कि एरियाज फॉर रूल मेकिंग, कहाँ पर हम रूल बना सकते हैं, कहाँ पर हम नहीं, कहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है। नोटिस रिक्वायरमेंट टू डेटा प्रिंसिपल, की डेटा प्रिंसिपल को नोटिस किस तरह से दिया जाए, क्या रिक्वायरमेंट के साथ दिया जाए, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना सकती है। कंसर्न मैनेजर रजिस्ट्रेशन एंड ऑब्लिगेशन, हमने कंसर्न मैनेजर की बात की थी, कंसर्न मैनेजर को कैसे रजिस्टर किया जाए और उनकी क्या ड्यूटीज रहेगी। पर्सनल डेटा ब्रीच नोटिफिकेशन प्रोटोकॉल्स, की जब पर्सनल डेटा ब्रीच का जो नोटिफाई करेंगे, जैसे जब भी डेटा ब्रीच हुआ तो उसके नोटिफाई करते टाइम क्या प्रोटोकॉल फॉलो होंगे, जो नोटिफाई आपको डेटा प्रिंसिपल को भी करना है और आपको बोर्ड को भी करना है। डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर रिक्वायरमेंट, जो सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशियरी जो डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट करेंगे उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स रहेगी। वेरीफाइबल कंसेंट मैकेनिज्म, हम कैसे कंसेंट मैकेनिज्म डेवलप करेंगे जिससे हम एज एटसेट्रा को वेरीफाई कर पाए। चाइल्ड डेटा प्रोसेसिंग सेफगार्ड, जब हम चिल्ड्रन का डेटा प्रोसेस करेंगे तो क्या एडिशनल सेफगार्ड हमें लेना है। डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोसीजर, ये इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोसीजर हम कैसे डिजाइन करेंगे, इस पे गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी। डेटा प्रिंसिपल राइट्स एक्सेस इरेजर ग्रीवेंस रिट्रेसल, ये डेटा प्रिंसिपल राइट्स को कैसे वो एक्सरसाइज करेंगे, एक्सेस राइट, इरेजर राइट, ग्रीवेंस रिट्रेसल राइट, इस पे गवर्नमेंट रूल बनाएगी। बोर्ड कंपोजिशन एंड ऑपरेशन, बोर्ड का कंपोजिशन क्या होगा और बोर्ड का क्या ऑपरेशन रहेगा। अपील प्रोसीजर्स एंड टेक्नो लीगल मेजर्स, अपील का क्या प्रोसीजर रहेगा उस पे गवर्नमेंट रूल बनाएगी, और टेक्नो लीगल मेजर्स क्या रहेंगे उस पे गवर्नमेंट रूल बनाएगी। ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स 2025 अ कॉम्प्रहेंसिव ओवरव्यू, ये ड्राफ्ट रूल्स उन्होंने इश्यू करे हैं 2025 में। जो किसने इशू करा है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है। इसके कुछ 2-3 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है उस पर हम डिस्कस करेंगे। नाउ व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट, नोटिस बाय डेटा फिड्यूशियरी टू डेटा प्रिंसिपल। हम कोई भी डेटा जब एज अ डेटा फिड्यूशियरी डेटा प्रिंसिपल से लेते हैं तो हमें क्या नोटिस में लिखना है, ये उन्होंने बताया है ड्राफ्ट रूल्स में। कंटेंट रिक्वायरमेंट, डिस्क्रिप्शन ऑफ पर्सनल डेटा बीइंग कलेक्टेड, हमें आपसे ये डेटा चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये डिस्क्राइब करना है कि व्हाट पर्सनल डेटा वी रिक्वायर फ्रॉम दैट पर्सन, पर्पस ऑफ प्रोसेसिंग द पर्सनल डेटा, व्हाई वी रिक्वायर दैट पर्सनल डेटा, इंफॉर्मेशन अबाउट राइट टू विड्रॉल ऑफ कंसेंट, दैट हमें उन्हें बताना है दैट यू हैव ऑल राइट्स टू विड्रॉ द कंसेंट। डिटेल्स ऑफ डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर एप्लीकेबल टू सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशियरी, जो डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर होते हैं उनकी डिटेल्स देनी है। ये क्लॉज जो है ये सिर्फ सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशियरी जो है उनके ऊपर अप्लाई होता है, नॉर्मल डेटा फिड्यूशियरी के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। फॉर्मेट स्पेसिफिकेशंस, जो हमने नोटिस की बात करी थी कि उसको कैसे देंगे, नोटिस क्लियर कंसाइज एंड इजीली कॉम्प्रहेंसिबल लैंग्वेज, क्लियर होना चाहिए, कंसाइज यानी शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए, एंड इजी कॉम्प्रहेंसिबल लैंग्वेज में होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम जिस इंसान को नोटिस दे रहे हैं उसे वो लैंग्वेज समझ में ही नहीं आता हो। मस्ट बी अवेलेबल इन इंग्लिश एंड ऑल 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस, इंग्लिश में तो होने ही चाहिए, साथ में जिस पर्सन को आप दे रहे हो उसकी जो रीजनल लैंग्वेज है जो उन 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस में स्पेसिफाइड है उस लैंग्वेज में होना चाहिए। विजुअल एलिमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अगर हम किसी विजुअली इम्पेयर्ड व्यक्ति को दे रहे हैं या ऐसे व्यक्ति को दे रहे हैं जो डिसेबल्ड हो तो वहां पे विजुअल एलिमेंट्स भी दे दें ताकि वो उसे बेहतर से समझ पाए। एक्सेसिबिलिटी फीचर्स फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, को जो हमारे दिव्यांग साथी है उनके लिए एक्सेसिबिलिटी फीचर्स भी हम देवें ताकि वो नोटिस को अच्छे से समझ पावे। डिलीवरी मेथड्स, डिलीवरी, अब हम नोटिस डिलीवर कैसे करेंगे ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। डिजिटल नोटिस वाया वेबसाइट्स, एप्स और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस, कैसे कि हम डिजिटल नोटिस दे सकते हैं वाया वेबसाइट, ऐप और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन।
ऑन मेल। फिजिकल नोटिसेज वेयर डिजिटल डिलीवरी इजंट फिजिबल, यहाँ पर हम डिजिटल, हमारे पास कोई मतलब कोई डिजिटल आईडी नहीं है सामने वाले व्यक्ति की, जहाँ ना हमारे पास उनका कॉन्टेक्ट नंबर है, ना हमारे पास उनका ईमेल आईडी है, वहां हम उन्हें फिजिकल नोटिस भी दे सकते हैं। लेयर्ड नोटिस अप्रोच परमिसिबल। लेयर्ड नोटिस की हमने पहले भी बात करी थी जब हम हेल्दीफाई ऐप के बारे में बात कर रहे थे, कि वो 4 पॉइंट जिस पे उन्होंने हमसे इंफॉर्मेशन मांगी थी, वो चारों पॉइंट को उन्होंने एक लेयर में अरेंज कर दिया कि हम वी रिक्वायर दिस डेटा फॉर दिस दिस पर्पसेस। एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिप्ट रिक्वायर्ड। अगर हमने किसी को नोटिस दिया है तो इट इज वेरी, एक हमें ये भी मैकेनिज्म उसमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा कि जिससे हमें एक्नॉलेज हो जाए कि उनको वो नोटिस रिसीव हो चुका है। नाउ दिस इज रजिस्ट्रेशन ऑफ कंसेंट मैनेजर्स। कंसेंट मैनेजर के रजिस्ट्रेशन के लिए रूल्स में बात की गई है। हमारी बात हुई थी कंसेंट मैनेजर कौन होते हैं। कंसेंट मैनेजर वो होते हैं जिन्हें कंसेंट मैनेज करने के लिए अपॉइंट किया जाता है। दो जो बताएंगे कि कब, जो जिन्हें जैसे ही इंस्ट्रक्शन मिला कि कोई विड्रॉ कंसेंट कर रहा है तो वो फिर उसके उसका डेटा वहां से इरेज करेंगे। एप्लीकेशन सबमिशन। सबसे पहले जो कंसर्न मैनेजर बनना चाहते हैं उन्हें एक एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के साथ विद प्रिस्क्राइब फीस एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन प्रूविंग टेक्निकल कैपेबिलिटीज। कंसर्न मैनेजर के लिए कुछ टेक्निकल कैपेबिलिटीज भी स्पेसिफाई करेंगे। मस्ट बी अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इंडिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है जो उन्होंने रूल्स में स्पेसिफाई कर दी है कि और कुछ हो या नहीं हो, इट मस्ट बी अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, यानी ओनली अ बॉडी कॉर्पोरेट कैन बी अ कंसर्न मैनेजर, इंडिविजुअल एचयूएफ पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट बी अ कंसर्न मैनेजर एज स्पेसिफाइड इन द ड्राफ्ट रूल्स। बाद में चेंज कर दे तो अलग बात है, अभी तो यही लिखा है उन्होंने कि मस्ट बी अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। Financial verification. Provide evidence of financial stability, including minimum capital requirements and solvency certificates. मिनिमम नेटवर्थ इज 2 करोड़। एक उन्हें उन्हें फाइनेंशियल वेरिफिकेशन होगा उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का। यहाँ पर कंसर्न मैनेजर के लिए मिनिमम नेटवर्थ जो गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई करी है रूल्स में वो है 2 करोड़। नेटवर्थ जो से कैलकुलेट होगी एसेट्स माइनस लाइबिलिटी से ये कैलकुलेट होगी, तो ये जो नेटवर्थ बनेगी उनकी ये मिनिमम 2 करोड़ होनी चाहिए। टेक्निकल असेसमेंट, फिर उनका एक टेक्निकल असेसमेंट होगा टू वेरीफाई सिक्योरिटी मेजर्स, इनक्रप्शन प्रोटोकॉल्स एंड इंटरप्रेटिव स्टैंडर्ड्स, ये भी रूल में मेंशन किया है। रजिस्ट्रेशन अप्रूवल, अगर ये जो तीनों चीजें हैं कि एप्लीकेशन, फाइनेंशियल वेरिफिकेशन एंड टेक्निकल कॉम्पिटेंस, इन तीनों में अगर गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड दैट द कंसर्न मैनेजर इज एडिक्वेटली इक्विप्ड, then the government data protection board will provide a registration certificate with a unique identification number for operating as a consent manager। अगर ये सब है तो गवर्नमेंट उन्हें एक यूनिक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इश्यू कर देगी। कंसर्न मैनेजर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं इसका। डिजिटल कंसर्न प्लेटफॉर्म में यूजर डैशबोर्ड, ये यूजर डैशबोर्ड हो गया। सेंट्रलाइज इंटरफेस शोइंग ऑल एक्टिव कंसर्न्स अक्रॉस मल्टीपल डेटा फिड्यूशरीज विद सिंपल टॉगल कंट्रोल्स। कंसर्न मैनेजर जो हो सकता है उसके पास मल्टीपल डेटा फिड्यूशरीज भी हो सकता है, वो एक से ज्यादा फिड्यूशरी का भी कंसर्न मैनेजर हो सकता है। तो वो इंटरफेस ऑपरेट करेगा जिसपे वो सारी एक्टिव कंसर्न बताएगा कि मैं इन चीजों के लिए कंसर्न ले सकता हूँ। कंसर्न रिसीव्ड, अगर उन्हें कोई भी कंसर्न मिली है तो वो कंसर्न रिसीव देंगे। क्रिप्टोग्राफिकली साइंड रिसीव्ड विद टाइम्स टाइम स्कोप ऑफ कंसर्न एंड वैलिडिटी पीरियड। तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। टाइम स्टैम्प यानी कब कंसर्न ली गई, स्कोप ऑफ कंसर्न किस पर्पस के लिए कंसर्न ली गई, एंड वैलिडिटी पीरियड यानी कंसर्न कितने समय तक वैलिड है। ऑडिट ट्रेल, comprehensive हिस्ट्री ऑफ ऑल कंसर्न एक्शंस इंक्लूडिंग ग्रांट, मॉडिफिकेशंस एंड विड्रॉल्स। एक इन्हें ऑडिट ट्रेल भी बनानी पड़ेगी कि ये कॉम्प्रहेंसिव हिस्ट्री रहेगी कि जितनी भी कंसर्न इन्हें रिसीव हुई है, जितनी भी कंसर्न इन्हें ग्रांट हुई है उसका रिकॉर्ड, जितने भी कंसर्न में मॉडिफिकेशन हुआ है कि अब उस कंसर्न को लिमिट किया है, उसको एक्सटेंड किया है, और विड्रॉल, जितने भी कंसर्न इनके पास से विड्रॉ हुई है उसका भी इन्हें डेटा मेंटेन करना पड़ेगा। इसेंशियल ब्रीच नोटिफिकेशन कंटेंट, ये हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी ब्रीच होती है तो हमें नोटिफाई करना है डेटा प्रिंसिपल को और डेटा बोर्ड को। रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन क्या है ब्रीच नोटिफिकेशन में जो उन्होंने रूल्स में स्पेसिफाई किया है। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ पर्सनल डेटा कॉम्प्रोमाइज, हमें बताना है कि साहब आपका कौन सा पर्सनल डेटा है जो आपसे हमसे कॉम्प्रोमाइज हुआ है। नंबर ऑफ डेटा प्रिंसिपल्स अफेक्टेड, ऐसे कितने हमारे डेटा प्रिंसिपल्स जो अफेक्ट हुए हैं उनका नंबर हमें स्पेसिफाई करना है। पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ब्रीच, जो ब्रीच हमसे हुआ है उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, क्या रिजल्ट है, ये हमें बताना है। मेजर्स टेकन टू मिटिगेट द ब्रीच, हमने ब्रीच के बाद क्या स्टेप्स लिए हैं जिससे उसका जो एडवर्स इम्पैक्ट है वो हम कम कर पाए।
कांटेक्ट डिटेल्स देनी है हमें कि कोई भी कांटेक्ट करना हो आपको फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए तो इनको कांटेक्ट करिए। स्टेप डेटा प्रिंसिपल शुड टेक फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन, हमें ये भी बताना है कि डेटा प्रिंसिपल क्या स्टेप ले जिससे वो खुद को प्रोटेक्ट कर पाए। रेमेडियल एक्शंस हम क्या ले रहे हैं ये भी बताना है। एंड सिस्टम इंप्रूवमेंट्स टू प्रिवेंट रिकरेंस, हम हमारे सिस्टम में ऐसे क्या इंप्रूवमेंट करेंगे जिससे ये बार बार ना हो। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इसेंशियल ब्रीच नोटिफिकेशन का ये पूरा कंटेंट हो गया कि हमें बताना है कि पर्सनल डेटा क्या कॉम्प्रोमाइज हुआ था, कितने लोग उससे अफेक्ट हुए थे, उस कॉन्सिक्वेंस का क्या रिजल्ट है, हमने क्या मेजर्स लिए हैं जिससे वो इम्पैक्ट हम कम कर पाए। नो टाइम पीरियड फॉर स्पेसिफाइड पर्पस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अब इन्होंने रूल्स में स्पेसिफाई करी है। डायरेक्ट पर्पस कंप्लीशन, डायरेक्ट पर्पस कंप्लीशन का ये हुआ व्हेन द ओरिजिनल पर्पस फॉर डेटा कलेक्शन हैज बीन एक्सप्लिसिटली फुलफिल्ड, एग्जांपल डिलीवरी ऑफ परचेज गुड्स, एग्जांपल ई कॉमर्स ऑर्डर इंफॉर्मेशन आफ्टर डिलीवरी प्लस 30 days फॉर रिटर्न। फॉर एग्जांपल मैंने कोई डेटा दिया ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को, वहां पर जो ओरिजिनल पर्पस था वो मेरा था कि मुझे वहां से गुड्स परचेज करना है, गुड्स की डिलीवरी लेनी है। अब ई कॉमर्स ऑर्डर इंफॉर्मेशन, अब ई कॉमर्स जो साइट है वो ये पॉलिसी बना रही है कि अगर डिलीवरी हुई उसके बाद 30 डेज उनका रिटर्न टाइम होता है, तो अगर 30 डेज की एक्सपायरी हो चुकी है यानी वो ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है, नाउ आई कैन नॉट रेज द रिटर्न रिक्वेस्ट, तो वो डेटा डिलीट कर सकते हैं क्योंकि जो स्पेसिफाइड पर्पस था जिसके लिए मैंने डेटा उन्हें दिया था वो कंप्लीट हो चुका है। टाइम बाउंड रिलेशनशिप इन कॉन्ट्रेक्चुअल और सर्विस रिलेशनशिप एक्सपायर्स और टर्मिनेट्स। फॉर एग्जाम्पल कोई टाइम बाउंड रिलेशनशिप है, मान लीजिए मैंने 90 डेज का किसी मूवी ऐप का सब्सक्रिप्शन लिया है, तो जो सर्विस डेटा है वो रिटेन 90 डेज के लिए होगा। तो अगर बाद में चाहे वो, अगर ऐप चाहे मूवी ऐप, तो इट कैन डिलीट माई डेटा आफ्टर 90 डेज बिकॉज सब्सक्रिप्शन एंड हो चुका है। और वो चाहे तो उनकी पॉलिसी ऐसे भी बना सकते हैं कि दे विल डिलीट द डेटा 30 days आफ्टर द डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन एंड्स, जैसा वो चाहे वैसा कर सकते हैं। स्टैट्यूटरी रिटेंशन पीरियड्स कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर्पस फुलफिल होने के बाद भी डेटा गवर्नमेंट कंप्लाइंसेस के लिए हमें रखना पड़ता है, जैसे when legally mandated retention periods expire, बैंक कीप डेटा फॉर 10 years एज mandated by आरबीआई। यानी जब आपने किसी बैंक में अकाउंट ओपन किया है और आपने जब अकाउंट एक्सेस करने के बाद जब आपने अकाउंट क्लोज किया है, तो यू कैन नॉट से बैंक कि आप अब हमारा डेटा आप इरेज कर दीजिए क्योंकि हमने अकाउंट क्लोज कर दिया है, बिकॉज एज mandated by आरबीआई बैंक्स हैव टू कीप द डेटा फॉर 10 years आफ्टर क्लोजर ऑफ अकाउंट, क्योंकि आरबीआई ने कहा है कि बैंक को अकाउंट क्लोजर के भी 10 साल तक वो डेटा सिक्योर स्टोर करना है। तो बैंक विल नॉट इरेज द डेटा, बैंक विल कीप द डेटा फॉर द पर्पसेस स्पेसिफाइड बाय द आरबीआई। Once the specified purpose is deemed to be no longer served, data fiduciary must delete or anonymize personal data unless explicit consent for extended retention is obtained. Example, if I had obtained the data for filing ITR, but the client has said me, sir, I am not interested in getting filed my ITR by you, and I don't want you to keep my data. तो जो पर्पस था वो अब नो लॉन्गर सर्व हो रहा है, तो एज अ डेटा फिड्यूशियरी आई मस्ट डिलीट दैट डेटा अनलेस एक्सप्लिसिट कंसर्न फॉर एक्सटेंडेड रिटेंशन इज ऑब्टेन, अनटिल अनलेस वो क्लाइंट मुझे कह दे कि ठीक है कोई बात नहीं, मुझे रिटर्न आपसे फाइल नहीं करवाना है, बट स्टिल आप मेरा डेटा रख सकते हैं। इसमें एक और इंपॉर्टेंट है, ऑल्सो बिफोर एटलीस्ट 48 hours ऑफ कंप्लीशन ऑफ टाइम पीरियड फॉर इरेजल ऑफ पर्सनल डेटा, the data fiduciary shall inform the data principal that such data shall be erased upon completion of such period। मतलब suppose I had a client, I had taken his data for ITR purposes, I had mentioned in the consent notice that I will retain this data for the period of 1 year from the date of ITR filing. Suppose I had filed the return on 24th of July 2025. Now the 1 year period will expire on 24th July 2026. So before at least 48 hours means I had to specify my client on 22nd July 2026 that, sir, your 1 year detention period of data is going to over and I am going to erase this personal data of you. So I have to inform the client that I am going to erase this personal data, shall inform the data principal that such data shall be erased upon completion of such period। मुझे उन्हें बताना पड़ेगा कि सर 24
जुलाई 2026 को आपका 1 ईयर एक्सपायर हो रहा है, और मैं इस डेट के बाद आपका डेटा इरेज कर दूंगा। एग्जाम्पल्स ऑफ वेरीफाइबल कंसेंट फॉर चिल्ड्रन एंड डिसेबल्ड। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशनल ऐप रजिस्ट्रेशन, हम वी ऑल आर most of us are parents, so educational app registration, two factor authentication via parents mobile plus email with digital signature confirmation before child can access learning platform। अगर कोई एजुकेशनल ऐप पे हम हमारे चिल्ड्रन को रजिस्टर कर रहे हैं तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन वो कर सकते हैं, एक पेरेंट्स मोबाइल पे प्लस ईमेल पे वो ओटीपी लें, डिजिटल सिग्नेचर कंफर्मेशन बिफोर चाइल्ड कैन एक्सेस द लर्निंग प्लेटफॉर्म, सो दैट वो डेटा वेरीफाई हो जाए, वेरीफाइबल पेरेंटल कंसेंट उन्हें मिल जाए। बैंकिंग ऐप फॉर विजुअली इम्पेयर्ड, अगर किनकी नज़र कमजोर है और उनके लिए अगर बैंकिंग ऐप है तो वहां पर वॉइस इनेबल्ड कंसेंट प्रोसेस होनी चाहिए। वहां पर सिर्फ टिक मार्क वाला ऑप्शन नहीं होना चाहिए क्योंकि वो देख नहीं पाते हैं ठीक से, इसलिए उनके लिए वॉइस इनेबल्ड इंस्ट्रक्शंस भी होनी चाहिए जिससे वो उसे प्रॉपर तरीके से सुन पाए और फिर अपना डिसीजन ले। हेल्थ केयर पोर्टल सिंप्लीफाइड कंसेंट फॉर्म विद विजुअल एड्स, एक विजुअल एड्स होने चाहिए ताकि जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज है वो प्रॉपर से अपनी कंसेंट दे पाए। नाउ डेटा फ्लो इन द क्लाइंट सीए रिलेशनशिप्स, जो हम रोज एक्सेस करते हैं, अंडरस्टैंडिंग डेटा रिलेशनशिप्स इन प्रैक्टिस। क्लाइंट इज द डेटा प्रिंसिपल बिकॉज ही इज द ओनर एंड ही कंट्रोल्स हिज पर्सनल डेटा। Chartered accountant is the data fiduciary. Why data fiduciary? Because trusted professional who manages clients' data responsibility acts in client's best interest. Client हम पे भरोसा करके डेटा दे रहा है और इस पूरी डेटा की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, भले हमने किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर को वो डेटा प्रोसेस करने के लिए दिया हो। द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट अस विद। हमने पूरा एक्ट में पढ़ा, एक्ट में डेटा फिड्यूशियरी के लिए स्पेसिफिक पेनल्टीज है, डेटा प्रोसेसर के लिए कहीं भी स्पेसिफिक पेनल्टीज नहीं है, वो जनरल क्लॉज में ही कवर होगा 50 करोड़ वाले में। लेकिन एज अ डेटा फिड्यूशियरी हम 200 करोड़ वाले क्लॉज में भी कवर होंगे, हम 250 करोड़ वाले क्लॉज में भी कवर होंगे। इनकम टैक्स और जीएसटी सॉफ्टवेयर, इट इज द डेटा प्रोसेसर। वाई? बिकॉज इट प्रोसेसेस डेटा सोनली अंडर चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्ट्रक्शंस। इनको हम जैसा बोलते हैं वैसे ही करते हैं, इनको हम क्लिक करके बोलते हैं कि आप इस डेटा को इस पोर्टल पे अपलोड कर दीजिए तो वो कर देते हैं। Client is the data principal, chartered accountant is the data fiduciary, and software provider is the data ownership, is the data processor। ये हमें एक सिंपल सा फ्लो है जो हमें हमारे प्रैक्टिस में ध्यान रखना है। Conclusion and way forward, we have covered almost all the provisions of the act. We have covered almost also the important provisions of the rules. Now what is the conclusion and way forward? अब हमें आगे कैसे बढ़ना है? DPDP Act is makes a foundational transformation in India's approach to data protection, moving from sectoral to comprehensive regulation and balancing innovation with privacy protection. Right? Implementation challenges. Some successful implementation requires clear rules, adequate resources for the data protection board, and awareness building across stakeholders, from multinational corporations to small businesses. कंप्लायंस रोड मैप्स क्या है? अब हमें क्या करना है? Organization should conduct data audits, update privacy policies, implement consent mechanisms, and appoint responsible personnel and develop breach notification protocols. सर हमें कम से कम कंसेंट लेने के ऊपर तो हमें थोड़ा सा हमारी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि ये जिस दिन भी एप्लीकेबल होगा उस दिन शायद हम एकदम से नहीं कर पाए, तो हमें अभी से कंसेंट वाले जो फॉर्म है, जो हमारी चेकलिस्ट है, वो तो तैयार कर लेनी चाहिए ताकि कल से कोई भी हमें ये आपने बिना कंसेंट के डेटा लिया है। As the regulatory landscape evolves, staying informed about amendments, rules and interpretations will also be critical। हमें ये भी ध्यान रखना है कि अभी अमेंडमेंट होंगे, अभी ड्राफ्ट रूल्स आए हैं, वो रूल्स फाइनल नहीं हुए हैं, वो रूल्स फाइनल होंगे, वो भी हमें देखना है कि वो रूल्स कब फाइनल होते हैं। Will be critical for all entities processing personal data of Indian citizens। Now what मतलब इसमें इम्प्लीमेंटेशन में गवर्नमेंट को एक तो कैटेगराइजेशन तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो अगर सभी को आप अगर उस 250 करोड़ वाले क्लॉज में अगर ले लेंगे तो इट विल बी ए ड्रेकोनियन प्रोविजन, बहुत दिक्कत आएगी। क्योंकि अभी इस पूरे एक्ट में कहीं भी क्लासिफिकेशन नहीं है, सिर्फ इतना बोला जुडिशरी और सिग्निफिकेंट डेटा जुडिशरी। डेटा जुडिशरी की भी जो पेनल्टीज है वो भी 250 करोड़ तक है, और सिग्निफिकेंट डेटा जुडिशरी की जो स्पेसिफिक पेनल्टी है वो तो 150 करोड़ तक की ही है।
जो हम ये पेनल्टी स्लाइड है हमारी देखेंगे, क्योंकि आई थिंक कि ये वो स्लाइड है जो हम सबको वापस याद रहनी चाहिए। बाकी कुछ हम भूल भी जाए तो चलेगा, बट दिस इज द स्लाइड विच वी रिक्वायर कि हमें बहुत अच्छे से पता हो। ये रही, फेलियर टू टेक रीजनेबल सिक्योरिटी सेफगार्ड्स बाय डेटा फिड्यूशियरी में है अप टू 250 करोड़ की पेनल्टी। फेलियर टू नोटिफाई पर्सनल डेटा ब्रीच टू बोर्ड और डेटा प्रिंसिपल है अप टू 200 करोड़। नॉन कंप्लायंस टू चिल्ड्रन डेटा है 200 करोड़। फेलियर इन ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑब्लिगेशंस रिलेटेड टू सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशियरी जो मैं अभी बात कर रहा था वो है अप टू 150 करोड़। यानी डेटा फिड्यूशियरी की पेनल्टी जो है वो सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशियरी से ज्यादा बड़ी है, जनरल पेनल्टी। ब्रीच इन ऑब्जर्वेंस ऑफ ड्यूटीज डेटा प्रिंसिपल के अप टू ₹10,000। ब्रीच ऑफ एनी अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट जो कहीं भी मेंशन नहीं है वो है 50 करोड़। और ब्रीच ऑफ एनी वॉलेंटरी अंडरटेकिंग गिवन टू बोर्ड, अगर आपने बोर्ड को कोई भी अंडरटेकिंग दी है और अगर आपने उसका ब्रीच करा है तो जो आपने जिस ओमिशन के कारण आपका या जिस ब्रीच के कारण आपकी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हुई होगी उसमें जो पेनल्टी है वही आपके पास ऊपर अप्लाई होगी, अगर आपने वॉलेंटरी अंडरटेकिंग का अबाइड नहीं किया है तो। Now I invite Paul for the answer session. आपको क्या है कि बहुत हितैषी बना हुआ है वर्ड्स। Thank you all. Now questions are invited. Any clarifications are invited. Queries are invited. Yes, sir. Thank you, Siddharth, sir. Now I request all the participants who are viewing this intellectual session on data protection. If you have any question, kindly raise your hands. I will just allow you to speak up. Any sort of question. Siddharth sir has welcomed everyone. Sir, I think no questions are there. Nirvik sir, may I proceed? Yes, yes. Now I request CA धवल जी कोठारी, respected sir, आपके words कुछ रह गए थे शुरुआत में, तो kindly sir wisdom के words बोलिए please. Thank you, today's MOC Yaswardhan bhai. Sir. Respected CA Nirbhik Gandhiji, Regional Council member and my council colleague. Today's speaker CA Siddharth Agarwal ji and today's moderator Yaswardhan bhai. In absentia chairman CRCC Ankur Gupta ji. मैं एक्चुअली पूरा सेशन मैंने एकदम इफेक्टिवली सुना। सिद्धार्थ भाई आपने जिस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया ना सेक्शन वाइज सेक्शन, तो लग गया कि पूरा सेक्शन एक बार ओवर थ्रू हो गया हम लोगों का। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपने डेटा फिड्यूसरी की बात की, जो हम लोग हैं, और जैसे ये एक्ट कंप्लीटली एप्लीकेबल हो जाएगा उसके बाद हम लोगों के ऊपर हमेशा 250 करोड़ की तलवार लटकी रहेगी। तो ये 250 करोड़ की तलवार को कैसे अपन लोग बच सकते हैं, तो वो आज के इस एक्ट के ओवरव्यू से हम लोगों को आइडिया लग गया है कैसे अपने डेटा को अपने को सिक्योर रखना है। आई एम रियली थैंकफुल टू सिद्धार्थ भाई फॉर एक्सप्लेनिंग द एक्ट इन अ बेटर वे, कि हम लोगों को पूरा एक्ट सारा का सारा एक्सप्लेन हो गया। थैंक यू। ओवर टू यू यशवर्धन भाई। Thank you, sir. Thank you. Thank you धवल sir. Now may I request CA Nirvik जी गांधी our own RCM sir. Sir, please vote of thanks के लिए आप आए please. थैंक यू फाउंडर चेयरमैन ऑफ द नीमच ब्रांच यशवर्धन जैन सर, आज के Sir, मॉडरेटर, thank you sir. और हमारे काउंसिल कलीग और हमारे सीका सर चेयरमैन ऑफ CARC धवल कोठारी जी, हमारे आज के लैंडेड स्पीकर सिद्धार्थ भाई। आई थिंक मैं फर्स्ट टाइम सिद्धार्थ भाई को सुन रहा हूँ, बट जिस प्रकार से सिद्धार्थ भाई ने डिलीवर किया जो एक नया यूनिक टॉपिक था, पता है जब से अप्रूवल लगा तो है। हेलो हेलो, जब से आई थिंक जो पैनलिस्ट हमारे हैं प्लस जो भी अटेंडी हैं, हम ओरकुट के जमाने से हैं, चाहे वो ओरकुट हो, फेसबुक हो, इंस्टा हो, लिंक्डइन हो, हम डीपी कब से करते हैं, और आखिरकार डीपी एक्ट आ भी गया, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, राइट। सो डीपी की इंपोर्टेंस काफी ज्यादा है, और वहीं सिद्धार्थ भाई ने पूरे सेशन बताया किस प्रकार हमारे जो डेटा की इंपोर्टेंस है, क्योंकि जो बता नहीं छोटी सी पेनल्टी बताई सिद्धार्थ में 50 करोड़, 100 करोड़, 200, 250 करोड़ नाम मात्र की पेनल्टीज कुछ सिद्धार्थ बता रहे थे आई थिंक। तो आई थिंक हम सी लोग जी उसका इम्पेक्ट समझना होगा कि किस प्रकार से डेटा, कहते हैं ना कि घर में बेटा झूठ बोल सकता है बट डेटा नहीं।
सो डेटा की क्या वर्थ है, वो वर्थ हम समझें, और जब से एप्लीकेबल हो उससे पहले आज हमारे पास टाइम है, और हम सिद्धार्थ भाई को भी लेकर आए, नेक्स्ट टाइम फिर से हम आएंगे किस प्रकार से हम डाटा की सेफ्टी कर सकते हैं, या हमें किस और आगे बढ़ाना चाहिए हमारे ऑफिस की प्रैक्टिस को, राइट, हमारी पर्सनल लाइफ को, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो या रिलेटिव फैमिली को के डेटा है उसको कैसे हम मैनेज कर सके, कैसे भी से उसको सिस्टमेटिक लेके चलें, क्योंकि हमारे क्लाइंट के डेटा भी हमारी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, राइट। तो उन सब के लिए हम सिद्धार्थ भाई फिर रिक्वेस्ट करें कि एक और सेशन हम प्लान करें, क्योंकि सेफ्टी के लिए अभी तो हमने जिस प्रकार से सिद्धार्थ भाई ने सेशन रखा, सेक्टर पूरा पूरा एक्ट आपने कवर कर लिया और बहुत ही अच्छी तरीके से आपने कवर किया। सो अगेन थैंक यू सिद्धार्थ भाई, आप छोटे सर मंदसौर से आते हैं, राइट, अभी मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स हैं और बहुत ही अच्छा सेशन लिया। सीआरसी पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती है और सभी से रिक्वेस्ट करती है कि सीआरसी रेगुलरली हर बुधवार और गुरुवार का वेबिनार का आयोजन करती है। आप में से कोई मेंबर अगर किसी टॉपिक पर सेशन देना चाहते हैं, डेफिनेटली ये सीआरसी का मंच आप सभी के लिए है, सभी ब्रांचों के लिए, जिन जिन ब्रांचों से मेंबर जुड़े हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट कि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, और हमारा न्यूज़लेटर जो मंथली पब्लिश होता है उसमें भी अपने आर्टिकल प्रेषित करें। साथ ही सीआरसी के हमारे सभी 12 काउंसिल मेंबर्स आप सभी के लिए ऑलवेज तैयार हैं, आपको कभी भी किसी भी टॉपिक पर, किसी भी इशू पर कोई भी डिस्कस करना हो तो डेफिनेटली एनी टाइम आप में कनेक्ट कर सकते हैं। सो अगेन थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। Thank you everyone. Thank you for your patience learning. सिद्धार्थ सर, थैंक यू सो मच। डेटा प्रोटेक्शन इतना इंपॉर्टेंट है, आपने ही बताया है। थैंक यू निर्भीक सर, थैंक यू धवल सर। साथ ही हमारे बीच थैंक कोई यू। क्वेश्चन था, आई थिंक ग्वालियर से अशोक विजयवर्गीय सर जुड़े हुए हैं, मैं देख पा रहा हूँ काफी मेंबर्स जो नोन है। अशोक सर आप कुछ कहना चाहेंगे, हमारे काफी सीनियर मेंबर हैं। नितेश भरदा जी सेक्रेटरी मंसूर ब्रांच जुड़े हुए हैं। अशोक सर, यस सर, अशोक सर म्यूट है आई थिंक। कोई और भी बोलना चाहता है तो प्लीज रेज योर हैंड। चेतन गुप्ता जी, नकुल जी, कमलेश जी, काफी सारे कुलभूषण जी, काफी सारे मेंबर्स हमारे जुड़े हुए हैं, नितेश भरदा जी, आप में से कोई भी। ओके, ओके सर, ओके, थैंक यू थैंक यू। सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर।